Hello everyone, welcome to BrainBite. Today we are mastering Pydantic, the library that turned Python's dynamic weakness into a structured powerhouse. So this isn't just a tutorial, it's a masterclass in building unbreakable data contracts, right? So we have all been there. You spend weeks building a perfect Python pipeline, right? It handles logic beautifully, the test passes, you deploy into the production, right? But at 3 a.m., the system crashes. So why is that case? Because the third-party API changed a field from integer to a string, or a user typed none into a required field, right? So in this world of dynamic language like Python, data is our greatest asset, right? But dirty data is our greatest liability. So traditionally, we have fought this, messy war with patchwork of if statements and various logical checks. But today in 2026, we don't do that anymore, right? You would be asking, so what exactly is Pydantic, right? So if you ask a junior developer, they might say it's a, validation library. But if you ask a senior engineer, they'll tell you that it's a data parsing engine, right? So there is a subtle but massive difference between validation and parsing. Validation is like a binary return statement, that is, it gives true or false. It's like a gatekeeper, right? But parsing is more active, it transforms the data. If Pydantic sees a string like 123, but you ask for a integer data type, right? So it doesn't just complain, it coerces it, right? So it transforms the data into the shape you need, ensuring that the time that data reaches your business logic, it is guaranteed to be correct, right? The philosophy here is like fail fast but fail louder, right? We want our errors to happen at the boundary of our application, right? Not deep inside the database transaction or when you are rendering your application. So Pydantic leverages Python's type hints. We will be seeing that into our examples and we'll dive deeper into that. To understand where we are, we need to understand the history of Pydantic, right? So Pydantic was created by Samuel Colvin back in 2017, right? For years, it was a pure Python library. It was elegant, it was intuitive, but as the world moved towards high frequency trading and massive AI workloads, it hit a performance wall, right? So then came the V2 revolution. So it is the one of the most ambitious rewrites in the Python ecosystem. Pydantic team moved the entire engine into the Rust language, right? So why does this matters to you? So Rust gave the necessary speed that it required. We are talking in the terms of 5x to 50x performance gain, and it provided the safety that it needed, right? By using memory safe languages like Rust for the engine, Pydantic became more robust against the edge cases. So by 2026, this shift has solidified Pydantic as the data backbone of the industry. Whether you are working with fast 8 API for web development, SQL model for databases, or LangChain for AI agents. So Pydantic is the engine that is working under the hood across industry. Then the question comes, right? Now you might be asking, why can't I just use Python's built-in data class? So it's a valid question. Standard data classes that Python offers are excellent for internal data storage, but it is the case when you already trust the data, right? But they offer zero runtime validation. So you can pass a string into a like integer field in data classes, and Python won't blink an eye until your math fails under the hood, right? So this is the case that Pydantic, offers us. It fails fast, but it fails louder, right? And it happens at the edge of our pipeline. It doesn't happen at the root level or deep inside the nested logic, right? So in this video we aren't just going to look at the basic models, we will go deep into the Pydantic framework. We'll look at various field validators and everything that Pydantic offers to give you a better understanding, and you can use it into your own pipeline or
you can implement this to your own work logics. So by end of this hour, you won't just know the Pynetic framework. You will be able to architect the system that simply do not break, right? So let's get our hand dirty with the code. Right. To understand why Pydantic is a revolutionary tool, we have to look back at how we handled the data before it even existed, right? So Python में हम majorly दो चीज पे rely करते थे. Those were, dictionaries and manual checks everywhere. सो डिक्शनरीज बहुत एक अच्छी चीज है. देख, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बट उसके साथ वो ना एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है इन लार्ज कोड बेसिस, राइट? सो अगर आपके पास एक यूजर डिक्शनरी है, तो अगर वहाँ पे एक फील्ड है यूजर आईडी एंड ऑल्सो एक ईमेल आईडी, सो अगर हर टाइम ये चेक करना पड़ेगा कि यूजर आईडी इज एन इंटीजर और अ स्ट्रिंग, ईमेल आईडी अगर पास करी है तो इफ इट्स एन वैलिड email address. So we have to write this, defensive code everywhere. Let's just look at how we used to do this in an old way, and we will also how Pydantic comes everywhere and makes our life easier. So एक example देखते हैं. सो एक डेटा डिक्शनरी बनाते हैं, राइट? जहाँ पे डेटा एक आइटम आईडी होगी, एंड देन इट also will have a quantity field, right? To process this data dictionary, we will write a function here. So इसका नाम देते process order, जहाँ पे डेटा जाएगा एंड देन डेटा would be a dictionary, right? So एक टाइप हिंटिंग का वे होता है. जब कोई अगर इसको फंक्शन को देखेगा, तब उसको पता चल जाएगा कि डेटा अगर यहाँ पे फील्ड आ रही है तो दैट इज अ डिक्शनरी. तो हमें देखना पड़ेगा कि डेटा में देर आर टू फील्ड्स, आइटम आईडी एंड क्वांटिटी. तो हमें चेक लिखना पड़ेगा हर टाइम, राइट? सो टू इवन चेक कि आइटम आईडी है भी कि नहीं अगर डेटा में, राइट? नॉट इन डेटा. और हमें लिखना पड़ेगा क्वांटिटी नॉट इन डेटा, राइट? अगर है ऐसा तो रेज करो वैल्यू एरर saying missing required fields, right? ये आप एरर कर दो अगर वो फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता. हमें एक और चेक करना पड़ेगा कि आइटम आईडी इंटीजर है कि नहीं. तो हमें लिखना पड़ेगा अगर नहीं है तो वी विल रेज अ टाइप एरर सेइंग आइटम आईडी मस्ट बी एन इंटीजर, राइट? तो हम रेज करेंगे चेक करने के लिए. इस इंस्टेंस एक वे होता है, तो वहां से हम चेक कर सकते हैं. तो डेटा आइटम आईडी पास करा, इट मस्ट बी एन इंटीजर. अगर नहीं है तो हम रेज करेंगे टाइप एरर, राइट? सेइंग आइटम. और एक चेक करना पड़ेगा कि अगर क्वांटिटी अगर जा रही है तो क्वांटिटी लेस देन जीरो और जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट? तो वो एक चेक करना पड़ेगा हमें. डेटा क्वांटिटी ये जीरो और जीरो के बराबर, लेस देन जीरो जीरो के बराबर नहीं हो सकती. अगर है तो वी वुड रेज वैल्यू एरर, राइट? सेइंग क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव. सो आप देख सकते हो कि लाइक जस्ट हमने हमारे पास दो ही फील्ड थी, आइटम आईडी एंड क्वांटिटी. उस दो फील्ड को चेक करने में ही हमारे इतने सारे इफ है, इफ स्टेटमेंट्स लग गए. हमें हर बार चेक करना पड़ेगा कि क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए. सो आप देख सकते हो कि अगर जैसे जैसे आपका डेटा ग्रो करते जाएगा, जैसे जैसे आप आपकी फंक्शनलिटी कोड में ऐड करते जाओगे, राइट? आपको हर टाइम ये डेटा वैलिडेशन स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. तो मोस्ट ऑफ योर टाइम वुड बी स्पेंट ऑन just to validate your data that is passed in your functions, right? तो एक हम काम करते हैं यहाँ पे, एक डेटा डिक्शनरी पास करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एज यू नो आइटम आईडी होगी एज एन की. उसमें वैल्यू पास करेंगे 101. क्वांटिटी होगी एक की, यहाँ पे पास करेंगे हम क्वांटिटी 5. तो आप देख सकते हो कि अगर कोई ऐसा भी यूजर पास करता है डिक्शनरी, राइट? तो इट वुड ब्रेक आवर कोड बिकॉज पहले तो क्वांटिटी हमें इंटीजर चाहिए जो कि यहाँ पे आ नहीं रही है, राइट? तो हमें उसका भी एक लॉजिक लिखा है, तो इट वुड रेज एंड टाइप एरर. हमें क्वांटिटी का भी लिखना पड़ेगा, राइट? ऐसे कि क्वांटिटी भी इंटीजर में ही हो सकती है, वो स्ट्रिंग में पास नहीं हो सकती, राइट? एज एक ही जरिया है कि हम हर बार ब्रेनस्टॉर्म करते जाएं एंड राइट दिस इफ स्टेटमेंट्स इन आवर कोड. एक बार पास करके देखते हैं एंड टू सी क्या एरर आता है. एज हमने जैसे लिखा था कि आइटम आईडी मस्ट बी एन इंटीजर, राइट? सो इट इज थ्रोइंग दैट एरर.
अगर इसको ही हमें पाइडेंटिक वे में लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं, राइट? हाउ डज पाइडेंटिक सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम एंड मेक्स आवर लाइफ इजियर? लेट जस्ट लुक एट दैट। सो हम क्या करेंगे, हमें कुछ फील्ड्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम पाइडेंटिक लाइब्रेरी। सो लेट जस्ट डू दैट। बेस मॉडल करके इंपोर्ट करते हैं, देन we would also have a validation error and positive int, right? So positive int टू for this line, right? क्योंकि हमें उसको लेस देन जीरो और जीरो के बराबर नहीं रखना है, तो we would import that as well. हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे एक डेटा क्लास लिखनी पड़ती है, राइट? एक काइंड ऑफ मॉडल होता है इन पाइडेंटिक। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर करके एक क्लास बनाते हैं, जहाँ इट वुड बी a टाइप ऑफ बेस मॉडल। उसमें लिखेंगे कि आइटम आईडी हम जो फील्ड चाहते हैं दैट वुड बी एन इंटीजर फील्ड, एंड जो क्वांटिटी फील्ड होगी दैट वुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट? विच इज ग्रेटर देन जीरो, राइट? तो हम ऊपर वाले फंक्शन सेम लिखेंगे। तो एक फंक्शन बनाते हैं, प्रोसेस ऑर्डर, राइट? जिसकी रिक्वायर्ड फील्ड होगी डेटा, इट वुड बी ऑफ टाइप डिक्शनरी। सो हमें लेट्स जस्ट राइट इट ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो ट्राई करेंगे हम कि ऑर्डर, इसको जो डिक्शनरी आ रही है उसको अनपैक करेंगे, एंड वी विल पास दैट इनटू द दिस क्लास, आइडेंटिटी क्लास। तो यहाँ पे हमने अनपैक कर ली, राइट? एंड वी वुड आल्सो हैव अ प्रिंट स्टेटमेंट। आई वुड जस्ट कॉपी दिस एंड वी वुड आल्सो राइट अ एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट? अगर कुछ एरर आता है, वैलिडेशन एरर एस ई, तो हमें उसको प्रिंट करना है, राइट? तो प्रिंट करेंगे हम सेइंग एंड आल्सो वांटेड टू प्रिंट दैट एरर, राइट? तो एक बार ये पास करके देखते हैं हमने क्या सही में अचीव कर लिया जो हम चाहते थे। तो देखते हैं, सेम, राइट? सो एज यू कैन सी हियर, कोई एरर नहीं आया, राइट? बिकॉज पाइडेंटिक ने क्या कर लिया कि हमने तो लिखा था पाइडेंटिक को आइटम आईडी इज इन इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, राइट? बट वी हैव पास्ड स्ट्रिंग आइटम आईडी। बट पाइडेंटिक इज इंटेलिजेंट इनफ टू सी दैट अगर इंटीजर, एक स्ट्रिंग में भी अगर इंटीजर पास करो तो इट वुड कोर्स इट, एंड इट वुडंट ब्रेक योर कोड। बिकॉज हमने कुछ यहाँ पे स्ट्रिक्टर फील्ड डाली नहीं थी, कि हमने ऐसा नहीं बोला था कि हमें बस इंटीजर ही चाहिए, राइट? हमने बस एक इंटीजर फॉर्मेट में दैट it would accept this data in a format of integer, right? So pydantic was intelligent enough to convert this string into a integer, right? Same with quantity। तो देख सकते हो कि इतना सारा if block को हमने reduce कर दिया just a few lines of code, right? So this is the power of pydantic, and this is where the pydantic framework helps to make our life easier and reduce our development time. Just we would otherwise we would spend in just writing the data validation code, right? सो आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि पाइथन में एक डेटा क्लास करके एक डेटा डेकोरेटर भी यूज करते हैं, राइट? सो डेटा क्लासेस आर ग्रेट फॉर स्टोरिंग डेटा दैट यू ऑलरेडी ट्रस्ट, राइट? सो इफ you are moving data internally within your own functions, data classes are fine. But if your data is coming from a user like outside world, right, or an API that that you are processing in your code, so data classes won't save you there, right? So because data classes कुछ enforce नहीं करता है, कुछ types और at validation at runtime, it is fine to use it internally, right? तो एक example देखते हैं, like what happens when we pass dirty data to data class field, or both. Let's see how pydantic stops it at the door, right? So हमें कुछ imports करने पड़ेंगे। तो पहले तो हम import करते हैं डेटा क्लास, और हमें पाइथन पाइडेंटिक से भी कुछ imports करने पड़ेंगे, राइट? तो लेट जस्ट राइट डेटा क्लास डेकोरेटर। तो एक क्लास बनाते हैं ऑफ यूजर डीसी करके,
फॉर डेटा क्लास, राइट। उसमें हम लिखेंगे यूजर, एक ही फील्ड होगी यूजर आईडी, हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर टू से यूजर आईडी एक इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। देन एक सेम क्लास लिखेंगे फॉर पाइडेंटिक, इसमें हम पाई बेस मॉडल पास करेंगे, राइट। तो वहाँ पे लिखेंगे यूजर आईडी भी हमें इंटीजर चाहिए, राइट। सो कुछ एक डर्टी डेटा पास करके देखते हैं इन दोनों में, लेट्स कंपेयर हाउ इट हैंडल्स, राइट। तो एक रॉ डेटा करके पास करेंगे डिक्शनरी which has ना यूजर आईडी फील्ड, वहाँ पे एबीसी पास कर देंगे, राइट, टू शोकेस अ डर्टी डेटा, राइट, इफ समवन पासेस दिस। पहले तो हम डेटा क्लास के फील्ड में डालेंगे फंक्शन लाइक क्लास में, तो यूजर डीसी एंड we would have to unpack this raw data, right, and then just print what would happen, कुछ स्टोर हुई होगी, राइट, उसमें यूजर डीसी डॉट, राइट। कहाँ एरर आ गया ये, पैरेंथेसिस, ओके, राइट। तो देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इंटीजर बोला था, बट इट उसने उसको ओवरराइट कर दिया और एबीसी स्टोर कर लिया, राइट। सो इसने तो कुछ सॉल्व करा नहीं हमारा, राइट, इसने कुछ वैलिडेशन स्टेप वगैरह कुछ किया नहीं। एंड लेट्स सी हाउ पाइडेटिक सॉल्व्स हियर, राइट। तो हम क्या करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे यहाँ पे, वी वुड ट्राई यूजर बाय, पाइडेंटिक वाले फंक्शन में अनपैक करेंगे हम इसको, रॉ डेटा, अगर कुछ एरर आता है तो वी हैव टू राइट एक्सेप्ट ब्लॉक validation error as e, right, and we will have to print that caught some error। देखेंगे क्या होता है। देख सकते हो कि हमने इंटीजर बोला तो पाइडेंटिक इज स्मार्ट इनफ टू चेक इफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज इंटीजर और नॉट। सो अगर यहाँ पे 10 लिख देता तो पास हो जाती यहाँ पे, कि बिकॉज हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट कुछ लगाया नहीं पैरामीटर, वी डिडंट यूज फील्ड पैरामीटर्स, राइट। तो यहाँ पे पाइडेंटिक ने क्या किया, इसको चेक किया कि इंटीजर है नहीं है, तो गिव अस एरर, बिकॉज अगर यहाँ पे 10 भी पास कर देता तो ये सही से काम करता, राइट, यहाँ पे कुछ एरर नहीं आता। बट सिंस इट्स एबीसी रैप्ड इन अ स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे बोला था कि हमें बस इंटीजर चाहिए, राइट, सो इट गेव अस द एरर। बट आप देख सकते हो कि डेटा क्लास में कुछ एरर नहीं आया, राइट। हमने कुछ यहाँ पे एबीसी स्ट्रिंग पास कर दिया, बट उसने वो भी स्टोर कर लिया, इवन दो वी हैव सेट की यूजर आईडी इज एन इंटीजर फील्ड, राइट। सो आप देख सकते हो कि दोनों कंपैरिजन करके कि ये तो डेटा क्लास कुछ काम का है नहीं, इट इज जस्ट इंटरनल स्टोर, डेटा स्टोरेज के लिए काम आएगा, एंड इंटरनली फंक्शन को प्रोसेस करने में। बट व्हेन द डेटा इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यूजर this data class functionality that is given by Python natively, it is not giving us that much of flexibility to check the data, right? So the reason Pydantic is exploding right now is because of LLM, large language models. So LLMs like GPT and Gemini are great at generating text, right? But they are prone to hallucination, right? When it comes to structured data. So if you ask an AI for JSON, it might give you something slightly broken, right? So Pydantic is the safety net for AI. It uses Pydantic models to force the AI to give us valid structured responses. So this is the evolution part of our history, moving from simple web like web forms or web forums to give to being the validator of artificial intelligence. So now that we know why we use it and how it evolved into this Rust powered beast, let's look at the internal logic and how does Pydantic actually think when it sees your data, right? So let's go under the hood. So let's just see the internal logic of Pydantic. Pydantic कैसे काम करता है? So Pydantic कोई normal library नहीं है। इसका काम दो distinct phases में होता है, right? First is definition time, then there is a run time as well. तो definition time जब आप अपना कोई script run करते हो तो Python जो class होती है उसकी class user model जब आप एक Pydantic
क्लास बनाते हो, राइट? और जैसे ही उसको देखता है पाइडेंटिक, मेटा क्लास अपना काम शुरू कर देता है, राइट? तो ये आपके टाइप हिंट्स, डेटा डिफॉल्ट्स, डिफॉल्ट वैल्यूज, कंस्ट्रेंट्स को स्कैन करता है और एक वैलिडेशन स्कीमा तैयार करता है। देन देर इज पाइडेंटिक V2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्कीमा सीधा रस्ट कोर को भेज देता है, राइट? तो रस्ट कोर एक सुपर ऑप्टिमाइज्ड वैलिडेटर कंपाइल कर देता है स्पेसिफिकली फॉर उस क्लास के लिए। देन देर इज रन टाइम। सो आप जब एक एक्चुअल डेटा मॉडल में पास करते हो, डेटा जब एक डेटा मॉडल में पास करते हो, तो वैलिडेशन पाइथन में नहीं बल्कि उस ऑप्टिमाइज रस्ट वैलिडेटर में होता है। इसकी वजह से पाइडेंटिक V2 इतना फास्ट है, राइट? सो इट अचीव्स एट नियर सी स्पीड। तो जैसे सी लैंग्वेज में स्पीड होती है बहुत ज्यादा, वैसे ही इसमें भी नियर सी स्पीड अचीव हो जाती है। सो इसमें एक वैलिडेशन लाइफ साइकिल भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले रॉ इनपुट इनटेक होता है। तो सबसे पहले ये आपकी डिक्शनरी या फिर जेसॉन लेता है। देन देर इज अ की मैपिंग पेयर। सो ये चेक करता है कि कोई एलियासेस तो नहीं है, राइट? जैसे आपने यूजर आईडी पास कर दी हो आईडी में। देन देर इज रिकर्सिव डाइव एज वेल। सो अगर आपके मॉडल के अंदर कोई एक दूसरा मॉडल है, राइट? सो देर इज अ पेरेंट क्लास एंड देर इज अ चाइल्ड क्लास। तो सबसे पहले एक ये जो डीपेस्ट चाइल्ड क्लास होगा उसको वैलिडेट करेगा, एंड बॉटम अप अप्रोच के तरह से वे से जाके वो फिर पेरेंट को वैलिडेट करेगा, राइट? एंड देर इज कोवर्शन एंड क्लीनिंग एज वेल। सो यहाँ पर आइडेंटिक टाइप्स को ठीक करता है, राइट? तो जैसे आपने स्ट्रिंग में 10 पास कर दिया हो तो उसको ये 10 इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन देर इज अ फाइनल असेंबली। दिस इज द होल वैलिडेशन लाइफ साइकिल ऑफ आइडेंटिक। सो आप एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे, राइट, वी विल सी द रिकर्सिव ड्राइव इन एक्शन। इसके लिए हमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। सो लेट जस्ट इंपोर्ट सम मॉड्यूल्स फ्रॉम pydantic। ये चाहिए मुझे। एंड फ्रॉम टाइपिंग लेट्स इंपोर्ट लिस्ट, राइट? ये इंपोर्ट्स कर दिए। लेट्स मेक टू क्लासेस, वन विल बी द पेरेंट एंड अनदर विल बी अ चाइल्ड, राइट? तो ये pydantic क्लास होगी। तो पहले आइटम बना लेते हैं। एक क्लास होगी आइटम, जहाँ पे हम बेस मॉडल पास करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे उस आइटम का नाम क्या है, तो उस स्ट्रिंग में जाएगा। देन उसका काउंट क्या है, राइट? तो ये होगा पॉजिटिव एंड। देन अनदर उसका एक पेरेंट क्लास, ये आइटम क्लास का एक पेरेंट क्लास बनाते हैं जो कि होगा कैटेगरी, राइट, ऑफ टाइप बेस मॉडल। इसमें हम डालेंगे कि उसका टाइटल क्या है, जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट हो जाएगा, एंड व्हाट आर ऑल आइटम्स इन दिस कैटेगरी। तो ये इट इज ऑफ टाइप आइटम, जो कि हमने ऊपर क्लास डिफाइन करी है, राइट? सो इसको चेक करते हैं। इसके लिए कुछ एक नेस्टेड डेटा लगेगा हमको कि कैटेगरी हो उसके अंदर, देन डिफरेंट आइटम्स का नाम और उसका काउंट हो, राइट? तो आई हैव मेड एक डेटा डिक्शनरी बनाते हैं, राइट? इसके अंदर होगा टाइटल, उस कैटेगरी का नाम। सो लेट्स से कि उसका नाम है। देन देर इज आइटम्स इन दिस कैटेगरी, वो इट इज ऑफ टाइप लिस्ट है, तो हमें लिस्ट में देना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि वो लिस्ट होगा जो कि ऊपर हमने डिफाइन किया, राइट? तो हमें लिस्ट में देना पड़ेगा उसका नाम। सो लेट्स से वी आर हैविंग अ लैपटॉप, एंड देन देर इज अ काउंट, हम दे देते 5। और इसको हमें इसको भी एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, राइट? देन अनदर डिक्शनरी वुड बी ऑफ नेम, लेट्स से माउस, एंड ऑफ काउंट दे देते इसको, स्ट्रिंग में डाल देते जस्ट टू सी द एरर, राइट? तो हमने एक डिक्शनरी बना ली ऑफ डेटा। अभी हम इसको पास करते हैं, राइट, कैटेगरी में। इसको अनपैक करते हैं, डेटा, एंड लेट जस्ट प्रिंट दिस, राइट? एक मैंने बना रखा है, तो लेट जस्ट पेस्ट हियर। तो देख सकते हो हमने हमने बना लिया एक डिक्शनरी एंड वी आर वैलिडेटिंग इट, राइट? तो देख सकते हो कि इसने स्टोर कर दिए 2 आइटम्स। तो इंटरनल लॉजिक ऐसे काम करता है कि पहले इसने आइटम को वैलिडेट किया क्योंकि इट इज ऑफ अ चाइल्ड ऑफ कैटेगरी, राइट? तो इसने पहले इसको वैलिडेट किया। देन
सिंस हमने यहाँ पे 10 पास कर दिया था तो उसने इसको इंटीजर लाइक पॉजिटिव इंट में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे अगर कुछ और पास करते तो लेट्स सी कि क्या होता। यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू डाल देता तो इसको एरर थ्रो कर देगा वो, राइट। देख सकते हो कि एक वैलिडेशन एरर आ गया जहाँ पे इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो बट वी हैव पास्ड नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो देख सकते हो पहले उसने बेस लाइक द चाइल्ड क्लास को वैलिडेट किया, देन एक बॉटम अप्रोच होता है जिसके जरिए उसने फाइनली पेरेंट क्लास को वैलिडेट किया, राइट। सो दिस इज वन थिंग विथ pydantic. लेट्स एक्सप्लोर अनदर दैट इज एक और चीज होती है उसमें, एरर बैचिंग, राइट, फॉर परफॉर्मेंस, राइट। तो इसमें क्या होता है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बात करते हैं एरर कलेक्शन की। तो नॉर्मल पाइथन कोड पहली गलती पर रुक जाएगा, राइट। लेकिन पायरेंटिक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ढीठ और स्टबर्न होता है, राइट। ये पहले डेटा स्कैन करता है और जितनी भी गलतियां मिलती है उसको एक लिस्ट बनाकर दे देता है। सो इसको कहते हैं बल्क प्रोसेसिंग, राइट। तो 2026 में जब हम एआई के लिए मिलियंस ऑफ रोज प्रोसेस करते हैं तब ये एक एफिशिएंसी बहुत काम आती है। तो एक बार देखते हैं कि बल्क प्रोसेसिंग कैसे काम आती है। तो लेट जस्ट मेक अ पाइडेंटिक क्लास ऑफ यूजर प्रोफाइल। एक ये पाइडेंटिक क्लास है, इसमें बेस मॉडल दे देते हैं। देन उसकी दो फील्ड है, यूजर नेम, इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, राइट, एंड देन देर इज अ एज विच इज ऑफ टाइप पॉजिटिव इंट, राइट। तो ये दो फील्ड है। अभी इसमें एक इनवैलिड डेटा पास करते हैं, राइट। तो देखते हैं कि पाइडेंटिक कितने एरर्स रोकता है, सारे कलेक्ट करता है या फिर कोई एक ही करता है, राइट। तो उसमें हम एक इनवैलिड डेटा पास कर देते हैं जिसमें होगा यूजर नेम, जो कि हमने बोला था स्ट्रिंग बट हम पास करेंगे इंटीजर, एंड एज होगी जिसमें हम पास करेंगे नेगेटिव वैल्यू, राइट। हमने चाहिए थे पॉजिटिव इंटीजर बट हम नेगेटिव वैल्यू पास करें जस्ट टू सी कि कितने एरर वो कैच कर पाता है, राइट। तो लेट जस्ट राइट अ ट्राई एंड एरर ब्लॉक, एक मिनट, राइट। ट्राई हम यूजर प्रोफाइल में पास कर देंगे इसको। Let's just unpack this invalid data and let's just try to catch the error. Accept uh, validation error as E, right? तो जब ये जितने भी एरर जब कैच करता है उसको एक एरर्स करके एक लाइक मेथड होता है उसमें स्टोर करता है, राइट। तो इसमें जस्ट टू राइट हियर एरर्स करके एक फंक्शनलिटी है जिसमें सारे एरर्स को स्टोर कर देगा, राइट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ collection of errors if any, right। तो हम इसमें एक लूप लगाएंगे फॉर error in e dot errors and let's just print those error। तो देख सकते हो कि उसने सारे ही एरर को कंपाइल करके एक लिस्ट बना दी जिसमें हम देख सकते हैं कि सारे एरर लिस्टेड है, राइट। सो दिस इज अ पावर ऑफ पाइडेंटिक, कि पाइथन में तो एक ही लाइन पे रुक जाता है बट पाइडेंटिक सारे एरर कैच करता है। तो जितने भी आपके पास जितना भी बड़ा डेटा सेट होगा हो सकता है कि उसमें बहुत सारे एरर हो, like Python would catch only one, but Pydantic catches each and every error that it encounters, right? So this was all the internal logic and validation lifecycle of Pydantic. After that, we would dive deeper into the core logic, the core functionality that Pydantic offers, that is field validators, model validators, and various other techniques that we would see in Pydantic. So let's move on to another topic, that is required, optional, and default fields in Python, like Pydantic. सो पाइडेंटिक में बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई एक फील्ड सेट करी है इन द बेस मॉडल क्लास ऑफ पाइडेंटिक, तो वो फील्ड डायरेक्टली एक रिक्वायर्ड फील्ड बन जाती है, राइट। तो अगर उसमें अगर यूजर वो डेटा नहीं भेजेगा तो पाइडेंटिक एक एरर थ्रो कर देगा, राइट। सो लेकिन कभी कभी हमें फील्ड को रिक्वायर्ड रखना होता है और उसमें एक एक्स्ट्रा रूल्स और लॉजिक भी लगाने होते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फील्ड। Let's see this by an example. Let's first import some of the libraries from pydantic field। तो ये field की बात कर रहा था मैं जो कि use होता है। And to give you an example, let's have an employee class जहाँ पे employee ID भी रहेगी and उसका एक name भी रहेगा, और name में हम एक कुछ required metadata भी रखेंगे जो कि validation logic में use होगा, right।
सो लेट्स जस्ट डिफाइन दैट क्लास। बेस मॉडल होगा ये एम्प्लॉय, इसमें हम रखेंगे एक एम्प्लॉय आईडी जो कि एक इंटीजर होगी, राइट। और इसको हम लाइक बोलेंगे कि ये सिंपल रिक्वायर्ड फील्ड है, राइट। तो इसमें हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, इट इज रिक्वायर्ड फील्ड एंड इट इज ऑफ टाइप इंटीजर, राइट। स्ट्रिक्ट भी नहीं रख रहे हम इसको, राइट। एंड अनदर इसमें एक नेम भी होगा, एक फील्ड, एक वैल्यू पैरामीटर। तो उसमें होगा कि वो स्ट्रिंग होगी, उसको हम सेट करेंगे कुछ एक वैलिडेशन लॉजिक के साथ। तीन, अगर हम यहाँ पे ऐसे तीन डॉट्स दे देंगे तो इट like Pydantic will assume it is a required field and it has some metadata। तो मिनिमम लेंथ डिफाइन कर देते हैं, दैट इज ऑफ 2, दो तो होनी चाहिए। देन डिस्क्रिप्शन रख देंगे हम एम्प्लॉय फुल नेम, राइट। तो हमने क्लास डिफाइन कर दी है। तो अगर इसमें से कुछ भी अगर मिसिंग रहेगा ना तो पाइडेंटिक एक एरर थ्रो कर देगा। तो जस्ट टू सी एन एग्जांपल, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये पास करके देखते हैं, राइट। तो देख सकते हो कि एक वैलिडेशन एरर आ गया कि इसमें स्ट्रिंग चाहिए थी नेम बट हमने डाला नहीं, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे देखा मिनिमम लेंथ 2, अगर कोई एक बस ए करके भेज देगा तो भी एरर थ्रो करेगा ये, राइट। नेम पास करना होगा यहाँ पे ऐसा, राइट। तो देख सकते हो एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स लेंथ चाहिए जो कि हमने सेट करा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड हाउ टू change them and add metadata and add additional logical steps into them। so next thing is default values। so default values का मतलब है कि अगर यूजर ने वो डेटा नहीं दिया तो आप टेंशन मत लो, हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे, राइट। तो ये आपको डेटाबेस स्कीमा के लिए बहुत यूजफुल होता है, जैसे कि इज एक्टिव हमेशा ट्रू होना चाहिए जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो टू गिव एन एग्जांपल, एक हम क्लास डिफाइन करते हैं पाइडेंटिक की, इसमें हम रखेंगे यूजर एंड इट इज ऑफ टाइप बेस मॉडल। एंड इसमें हम रखेंगे तीन फील्ड, यूजर नेम होगा दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, इसमें इज एक्टिव करके पैरामीटर होगा जिसको हम इज एक्टिव लिखेंगे एंड उसमें हम पास कर देंगे ट्रू, राइट। सो ट्रू का मतलब है कि हमने यहाँ पे एक बूल को पहले लिखना होता है, देन आप इसको ऐसा ट्रू असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब है कि हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी उसकी, राइट, राइट। एंड देन देर इज रोल, कुछ अगर रोल है तो इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग और हम इसमें लिख देंगे कि अभी के लिए वो सब्सक्राइबर है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन फील्ड है, दो हमने दो की भी रिक्वायर्ड लाइक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। तो अगर यूजर ये दो फील्ड पास भी नहीं करेगा तो इट ऑटोमेटिकली असाइंस देम एज ट्रू एंड सब्सक्राइबर वैल्यू फॉर यूजर नेम लाइक इज एक्टिव एंड रोल फील्ड, राइट। तो एक हम डेटा पास करके चेक कर लेते हैं। तो अगर यू डॉट यूजर लिखो और बस यहाँ पे मैं यूजर नेम पास कर दूँ, लेट्स सी अभिषेक। तो देख सकते, तो हम चेक करते हैं कि क्या इससे ये दोनों फील्ड भी सेट हुई है कि नहीं। तो प्रिंट करेंगे यू डॉट इज एक्टिव को यू डॉट रोल, राइट। तो देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होगी उसको, राइट। सो कई बार हमें डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स नहीं रखनी होती है, राइट। सो जैसे कोई यूजर साइन अप कर रहा हो, राइट, तो उसकी जो साइन अप डेट होती है वो ऑटोमेटिकली एक हमें पैरामीटर के जरिए चाहिए, तो वो चीज हमेशा चेंज होनी चाहिए, राइट। इट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड बट उसको हमेशा चेंज होना पड़ेगा विद टाइम, राइट। तो अ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहेगा ये फील्ड चेंज होते रहेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक पैरामीटर होता है दैट इज डिफॉल्ट फैक्ट्री इन फील्ड। see that by an example। तो first we'll start by importing some of the libraries। तो from date time import date time, right। identity के कुछ classical imports। so ये हमें libraries चाहिए to for an example। तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे log, जिसका नाम होगा log। इसमें हम पास करेंगे बेस मॉडल, राइट। इसमें दो फील्ड होगी, log id जो कि एक स्ट्रिंग होगी, इसको हम we want it is a required field, right।
बट इसमें हम डिफॉल्ट फैक्ट्री के जरिए जब भी कोई नया यूजर लॉग इन करेगा, हम एक लॉग आईडी, एक यूनिक स्ट्रिंग चाहते हैं जो कि हमें यूयू आईडी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इसमें हम डाल देंगे डिफॉल्ट फैक्ट्री लैम्बडा फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि हमें देगा स्ट्रिंग ऑफ UUID 4। सो दिस वाज लॉग आईडी। देन हमें एक टाइम स्टैम्प भी चाहिए, राइट, जब ये कोई यूज़र लॉग इन करे या फिर साइन अप करे। सो हमें चाहिए डेट टाइम, जो भी इसका फॉर्मेट होगा डेट टाइम। इट इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, लाइक रिक्वायर्ड फील्ड, बट उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा। सो डिफॉल्ट फैक्ट्री हम सेट करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, राइट। तो देख सकते हो हमने दो फील्ड रखी है, दोनों ही रिक्वायर्ड है और दोनों का ही लाइक डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा, राइट। सो देखते हैं, एक L1 लॉग बनाते हैं। हम कुछ पास नहीं करेंगे, लाइक जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हमेशा मॉडल लेता रहेगा जब भी लाइक क्लास लेती रहेगी जब भी इनिशिएट होगी, राइट। तो देखते हैं पहले प्रिंट करके। सो देख सकते लॉग आईडी क्या आ रही है हमें देखना पड़ेगा। तो ओके, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस स्टेटमेंट, राइट। तो देख सकते हो हर टाइम एक नई स्ट्रिंग जनरेट हुई है लॉग का। अगर हमें टाइम स्टैम्प देखना है तो देख सकते हो कि टाइम स्टैम्प भी हर टाइम चेंज हो रहा है, राइट। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही कॉल हो गए, इसलिए सेम ही है। बट थोड़े देर बाद अगर L2 कॉल होगा तो इट वुड हैव अ डिफरेंट टाइम स्टैम्प, राइट। तो वैल्यूज और फील्ड्स इन पैरेंटिक, और हमें हर टाइम अगर चेंज करना हो डिफॉल्ट पैरामीटर्स को, अगर यूजर पास भी ना करे, अगर हमें उसको लाइक समथिंग इंक्रीमेंटली और समथिंग दैट चेंजेस एवरी टाइम, तो उसके लिए हमें डिफॉल्ट फैक्ट्री एक वे होता है उसको सेट करने का, राइट। मूव ऑन टू अनदर टॉपिक दैट इज ऑप्शनल फील्ड्स। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे ऑप्शनल, राइट। सो एक क्लास बनाते हैं ऑफ प्रोफाइल, नाम होगा इसका बेस मॉडल। उसमें हम दो फील्ड रखेंगे, बायो होगा एक। अ, उसको अगर ऑप्शनल बनाना है तो दो वे है, पहले हम एक वे देखते हैं। तो इसको हम स्ट्रिंग दे देंगे, नहीं है तो नन सेट कर दो, इसको भी नन। तो दिस इज अ ट्रू ऑप्शनल फील्ड, ये जस्ट अपग्रेडेड वर्जन है टू राइट एनी ऑप्शनल फील्ड। तो अगर यूजर ने स्ट्रिंग पास करी है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नन सेट कर देंगे। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ राइटिंग दैट, राइट। ओल्ड वे देखते हैं पहले कैसे किया जाता है। सो वेबसाइट रखेंगे, इसको हम ऐसे ऑप्शनल मेथड में पास कर देंगे, दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और हम इसको देंगे नन, राइट। है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नन सेट कर दो आप, राइट। तो एक कॉल भी करके देखते हैं इसको। तो अगर p प्रोफाइल है तो कुछ पास नहीं किया, तो लेट्स सी व्हाट इट सेव्स इन बायो। तो दिस इज नन सेट कर लिया इसने। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट ऑप्शनल फील्ड। तो नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, एक नन, लेकिन आपको ऐसे नन असाइन करना पड़ेगा उसको टू हैव समथिंग इन योर क्लास। तो आपने देखा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड, व्हाट आर ऑप्शनल फील्ड्स एंड व्हाट आर डिफॉल्ट फील्ड्स। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फील्ड से, कैसे सेट करते हैं, उसमें भी कुछ अगर लॉजिक लिखना हो तो कैसे किया जाता है वो हमने देखा। कि डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करें अगर यूजर पास भी ना करे, लेकिन हमारे पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कुछ हमें डिफॉल्ट फील्ड सेट करने के लिए, राइट। एंड अगर हमें वो डिफॉल्ट फील्ड या फिर रिक्वायर्ड फील्ड जो भी है उसको हमें एज इन इंक्रीमेंटल वे या फिर कुछ अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए, एक सेट वैल्यू भी नहीं चाहिए, तो फिर डिफॉल्ट फैक्ट्री का यूज कर सकते हैं। एंड लेटर वी सॉ एन ऑप्शनल फील्ड। तो ऑप्शनल फील्ड इज नथिंग लाइक सिमिलर टू डिफॉल्ट फील्ड ओनली, बस यहाँ पे तुम इसको नन टाइप असाइन कर देते हो एंड हैव सम standard format to uh, have a field as optional field, right? तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि how is default field is different than optional field, right? तो इसको हम समझते हैं। तो क्या होता है ना कि डिफॉल्ट फील्ड का मतलब है अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो मैं ये जो वैल्यू मैंने सेट करी है वो यूज कर लूंगा, राइट। जैसे यहाँ पे दिखा था कि यूज एक्टिव के लिए हमने बुलियन था, लेकिन हमने एक ट्रू
एज इन डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर रखी थी, तो इट इज काइंड ऑफ अ बैकअप प्लान फॉर मी, राइट। और ऑप्शनल में क्या होता है कि आप वैल्यू दो या फिर ना दो, राइट, दोनों चलेगा मुझे। अगर नहीं दोगे तो मैं उसे नन मान लूंगा। हियर आई हैव अ चॉइस, राइट। सो आपने देखा इन दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा था, राइट। सो लॉजिक यही है कि डिफॉल्ट फील्ड अगर मिसिंग है तो फिर मैं बैकअप वैल्यू यूज कर लूंगा जो भी मैंने सेट कर ली है। ऑप्शनल फील्ड में क्या होता है कि अगर वैल्यू मिसिंग है तो फिर मैं नन उठा लूंगा वहां से, राइट। सो दोनों ही केस में यूजर दोनों को ही ओमिट कर सकता है, दोनों को भी स्किप कर सकता है, राइट। इन एनी केस डिफॉल्ट फील्ड में मेरे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, और अगर नहीं है तो मेरे पास ऑप्शनल फील्ड में नन वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइक डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल फील्ड्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन पाइडेंटिक, दैट इज एनोटेटेड। सो पाइडेंटिक के लेटेस्ट वर्जन के बाद एनोटेटेड का यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस बन चुका है इन इंडस्ट्री। सो अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ग्रेड स्टैंडर्ड लेवल पे प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपको एनोटेटेड समझना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो सिंपल शब्दों में एनोटेटेड एक कॉम्बो पैक की तरह होता है। इसमें टाइप, हिंट, फील्ड, मेटा डेटा, द रिक्वायरमेंट्स और वैलिडेशन लॉजिक तीनों एक ही साथ बाइंड कर देते हैं, राइट। सो अभी तक हमने देखा कि हम मॉडल के अंदर फील्ड यूज कर रहे थे, राइट। यहाँ पे फील्ड बना के हम इसको यूज कर रहे थे। लेकिन सोचिए अगर आपके पास 5 अलग अलग मॉडल्स हैं और सब में यूजर आईडी हमेशा रिक्वायर्ड है, राइट। तो और इसका लेंथ भी फिक्स है। तो हर बार फील्ड लिख के आपको यू नो इसका लिखने से अच्छा है कि आप एक रीयूजेबल कस्टम डेटा टाइप बना लो और उसको ही पास कर दो हर एक जगह पे, राइट। तो अगर आपको फ्यूचर में कुछ चेंजेस भी करने हो उस रिक्वायर्ड फील्ड में, तो एक ही जगह आप उस कस्टम टाइप में चेंज करके आप सारे ही फंक्शंस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आपका लाइक फ्यूचर वर्क भी बचेगा। सो दिस इज मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एनोटेटेड। सो एक एग्जांपल देखते हैं टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए कुछ इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, तो लेट जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। सो टाइपिंग के अंदर होता है एनोटेटेड, तो राइट। और स्टैंडर्ड पाइडेंटिक इंपोर्ट्स, बेस मॉडल, फील्ड, राइट। तो ये स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स कर लिए। तो एक क्लास बनाते हैं और आपको दिखाते हो कि एनोटेटेड क्यों जरूरी हो जाता है, राइट। तो लेट जस्ट हैव अ एडमिन क्लास, राइट। इसका होगा बेस मॉडल, इसमें नेम होगा, इसको हम स्ट्रिंग दे देंगे और इसको सेट करेंगे। वैलिडेट करना पड़ेगा ना, तो फील्ड दे देंगे, पैरामीटर विद फंक्शन। इसमें 3 वैल्यू पास है, इसका मतलब है कि इट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। इसका मिन लेंथ हम दे देते 3, मैक्स लेंथ दे देते दैट इज 50, राइट। तो ये बन गया नेम, देन डिपार्टमेंट, इट इज ऑफ टाइम, स्ट्रिंग, राइट। तो एक हो गया क्लास एडमिन हो गई, एक क्लास बनाते हैं और एक कस्टमर की। यहाँ पे बेस मॉडल जाएगा, इसमें फील्ड्स होंगे नेम, इसको भी हम स्ट्रिंग सेम यही चाहिए मुझे, राइट। रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए, देन उसका लेंथ मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, राइट। और ईमेल जाएगा यहाँ पे, इट इज ऑफ टाइम, टाइप स्ट्रिंग, राइट। तो आप देख सकते हो कि मुझे ये चीज हमेशा ही लिखनी पड़ी। अगर मेरे पास सेम ही काइंड ऑफ चीज हर जगह जा रही है तो इट इज बेटर कि मैं उसको एक रियूजेबल कस्टम टाइप में बदल दूं, ताकि वही मैं हर जगह पास करूं, और मुझे फ्यूचर में अगर कुछ चेंज करना रहा तो वो हर जगह चेंज हो जाएगा, राइट। सो देखते हैं कि एनोटेटेड सेम चीज को एनोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो एक हमें वैल्यू स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड नेम करके एक वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे हम एनोटेटेड का यूज करेंगे। अ, इसमें जाएगा इट इज अ स्ट्रिंग, क्या टाइप है इसका, फील्ड जाएगा टू से इफ इट्स ऑप्शनल, और यहाँ पे 3 डॉट्स का मतलब होता है कि ये फील्ड हमेशा रिक्वायर्ड होगी, राइट। मिन लेंथ होगी इसकी 3, एंड देन मैक्स लेंथ होगी इसकी 50, राइट। तो एक एनोटेटेड फील्ड यहाँ पे बन गई है, इसको हम हर जगह पास कर देते हैं, right. Let's just leave this and this as well.
तो आप देख सकते हो कि कितना इजी हो गई है अपनी लाइफ, राइट? जस्ट बिकॉज वी हैव यूज दिस। तो अगर मुझे फ्यूचर में कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं यहीं आके चेंज कर दो, इन दोनों मॉडल्स में वो चेंज हो जाएगा अपने आप ही, राइट? सो मुझे हर बार आने की चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो गया इसको? अच्छा, मैक्स डिजिट नहीं होगा यहाँ पे, मैक्स लेंथ होगा, राइट? तो देख सकते हो कि हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं एज एन एनोटेटेड। एक और एग्जांपल देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे सेट करते हैं विद एनोटेटेड। इसी को यूज करके देखते हैं। तो पाई टाइपिंग से हमने एनोटेड यूज कर लिया, पाइडेंटिटी से बेस मॉडल एंड फील्ड। तो अगर हमें कुछ रिक्वायर्ड नेम में अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो तो क्या होगा? स्ट्रिंग तो होगी, ये रिक्वायर्ड थी, राइट? तो अगर कुछ पास यूजर नहीं करता है तो हमारे पास ऑप्शन रहना चाहिए कि डिफॉल्ट कुछ सेट कर पाए हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डॉट की जगह हम रख देंगे मिन और मैक्स का कुछ काम है नहीं। तो अगर नहीं है तो डिफॉल्ट दे दो हमें, कुछ वैल्यू अगर होगा तो ऐड मी, राइट? ये डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है। तो देख सकते हो हमने ये डिफॉल्ट वैल्यूज की भी कैसे यूज करते हैं एनोटेटर में देख लिया। एंड ऑप्शनल फील्ड में भी सेम, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ऐसे ही ऑप्शनल नेम अगर ऑप्शनली रखना है, राइट, जो कि हो नहीं सकता, बट लेट जस्ट हैव दिस फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो अगर स्ट्रिंग नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा? नन दे दो मुझे, राइट? नन ऑप्शन और टाइप हो जाएगा। एंड उसका डिफॉल्ट वैल्यू एडमिन की जगह हो जाएगी नन, राइट? और दे देते हैं मैक्स वैल्यू कुछ इसको, मैक्स लेंथ दे देते हैं 150, राइट? तो देख सकते हो हमने तीनों फील्ड देख ली, रिक्वायर्ड, डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल फील्ड, कि कैसे एनोटेशन में इसका यूज होता है एंड हाउ डज इट मेक आवर लाइफ इजियर, राइट? सो इसको यूज करने का मेन एडवांटेज है कि आपका कोड छोटा और पढ़ने में काफी आसान हो जाता है। रीयूजेबिलिटी होती है, एक बार टाइप बनाना और 1000 जगह या फिर 100 जगह यूज किया जा सकता है। और फ्यूचर प्रूफ भी है आपका कोड। सो इंडस्ट्री में आप इसी तरीके से कोड लिखा जाता है, राइट? स्पेसिफिकली जब आपको एपीआई या फिर कहीं पे भी यूज करना हो, राइट? सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फील्ड वैलिडेटर्स। तो सबसे पहले देखना समझना पड़ेगा कि फील्ड वैलिडेटर की जरूरत क्यों है, राइट? तो पाइडेंटिक में बेसिक टाइप चेकिंग तो होती ही है, जहाँ पे हम लाइक अगर आपने इंटीजर मांगा है तो फिर वो इंट ही देगा, भले आपने स्ट्रिंग में कोई 25 लिख के दे दे, बट वो उसको इंट 25 कर ही देगा, राइट? लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में सिर्फ टाइप चेकिंग से काम नहीं चलता, राइट? अपने पास कुछ बिजनेस रूल्स भी होते हैं हर एक फील्ड को चेक करने के लिए। तो वो अप्लाई करने के लिए फील्ड वैलिडेटर्स काम आते हैं, राइट? तो सोचिए अगर आपके पास कोई एक एज करके फील्ड है, राइट? उसको आप इंटीजर रखना चाहते हो, राइट? तो पाइडेंटिक बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो टाइप चेक करके बता देगा कि इंट है कि नहीं। अगर कोई स्ट्रिंग में इंट पार्स कर रहा है तो फिर वो उसको टाइप कन्वर्जन कर देगा, राइट? लेकिन कुछ व्हाट इफ अपने पास एक बिजनेस लॉजिक भी है एज को वैलिडेट करने के लिए। हमें एज तो इंट चाहिए ही चाहिए, बट उसमें हमारे पास बिजनेस लॉजिक है कि वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वो 18 से ऊपर एज होनी चाहिए। और फिर एक और लॉजिक है कि वो 120 से कम होनी चाहिए, राइट? वैल्यू। तो ये हमारे पास बिजनेस लॉजिक है, तो इसको चेक करने के लिए हम फील्ड वैलिडेटर का यूज करते हैं। तो सिर्फ इंट बोलने से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें पाइडेंटिटी को बताना पड़ेगा कि भाई डेटा तो चेक तो कर ही तू, लाइक डेटा टाइप को, लेकिन मेरे कस्टम्स रूल भी जो है वो भी अप्लाई करो। तो यही काम है फील्ड वैलिडेटर के साथ, राइट? तो ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं फील्ड वैलिडेटर का सबसे पहले। तो फील्ड वैलिडेटर क्या होता है कि हमें उसका एक मोड समझना पड़ेगा। फील्ड वैलिडेटर में एक फंक्शनलिटी होती है मोड। अगर किसी ने मोड इक्वल्स बिफोर रख दिया है ना, तो ये क्या करेगा कि जस्ट बिफोर टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप चेकिंग, अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि आप उस पर क्लीन करना चाहते हो या फिर सब काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो डेटा के साथ, तो मोड इक्वल्स आप बिफोर करना पड़ेगा। तो पहले वो अपना बिजनेस लॉजिक लगाएगा पेडेंटिक, एंड देन उस पे कुछ अगर कन्वर्जन करना है, टाइप चेकिंग करनी है, तो फिर उसके बाद वो करेगा वो, राइट? तो ये है मोड इक्वल्स बिफोर लिखने का मतलब। तो आप सोचिए अगर आपके पास कोई एक डेटा आ रहा हो, राइट, एपीआई से या फिर कहीं वेब फॉर्म से आ रहा होगा, राइट? तो फिर डेटा मैसी हो सकता है वहां पे। तो सोचिए अगर आपके पास एक कोई फील्ड है प्राइस की, राइट?
और यूजर आपको प्राइस इस स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दे आपको, जस्ट ऐसे, राइट। डॉलर सिंबल भी उसमें डाल दिया है, ऐसे स्पेसेस भी है उसमें, राइट। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई स्ट्रिंग आपको देगा प्राइस में, आपको तो इंटीजर चाहिए था लेकिन स्ट्रिंग पास कर दी, तो इसे टाइप कन्वर्जन करने जाएगा, टाइप चेकिंग करने जाएगा पाइडेंटिक, तो फिर वो तो ब्रेक कर ही जाएगा, राइट। वहां पे आपके पास फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो टाइप चेकिंग से करने से पहले कुछ कर पाए वो। तो फील्ड वैलिडेटर यहीं पे काम करता है, मोड इक्वल्स बिफोर कर दोगे एंड देन इस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, इसमें आप सिंबल हटा सकते हो, राइट। कॉमास, द स्पेसेस आप रिमूव करके क्लीन स्ट्रिंग, भले स्ट्रिंग पास कर दो, टाइप कन्वर्जन करके पाइडेंटिक उसको इंट या फिर फ्लोट कर ही देगा। तो दिस इज मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फील्ड वैलिडेटर हियर, राइट। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक प्राइस वेरिएबल के साथ देखा था, ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्लीन कर सकते हैं अपन विथ फील्ड वैलिडेटर, राइट। तो पहले हमें कुछ स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। इंपोर्ट करेंगे क्लासिक बेस मॉडल, राइट, एंड देन फील्ड वैलिडेटर यूज करेंगे। सिंस हम स्ट्रिंग को लाइक कन्वर्ट करने वाले हैं, इसमें से कॉमास, सिंबल्स एंड स्पेसेस, तो हमें रेजेक्स का यूज करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट करेंगे regex लाइब्रेरी आरी, राइट। तो एक क्लास लिखते हैं प्रोडक्ट, राइट। उसमें बेस मॉड्यूल पास कर देंगे। इसमें दो फील्ड होगी, नेम होगा एक, तो स्ट्रिंग होगी, एंड देन देयर विल बी प्राइस, जो कि हम फ्लोट सेट करेंगे। तो फील्ड वैलिडेटर तो एक क्लास मेथड होती है, राइट। तो हमें क्लास में लिखना पड़ेगा। क्लास मेथड होती है जहाँ पे डेकोरेटेड हम क्लास मेथड का भी यूज करेंगे, एंड फील्ड वैलिडेटर है तो फील्ड वैलिडेटर भी हमें एज इन डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फील्ड वैलिडेटर। तो हमें देखना पड़ेगा किस पे वैलिडेट करना है, क्या फील्ड है वो, तो हम प्राइस लिख देंगे क्योंकि प्राइस पे हमें करना है, राइट। तो प्राइस पास कर दिया हमने। मोड हमने सेट कर दिया बिफोर। हमें क्लास मेथड लिखनी पड़ेगी टू टू हैव आवर बिजनेस लॉजिक, जो भी हम क्लीनिंग वाला लॉजिक लिखने वाले, राइट। तो क्लास मेथड कर दी। एक मेथड बनाते हैं क्लीन करेंसी। तो सिंस ये क्लास मेथड है तो इसमें सबसे पहले तो एक पैरामीटर जाएगा जो कि क्लास का ही होगा, रेफर टू द क्लास इटसेल्फ, तो कि जो कि प्रोडक्ट है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे वी वुड यूज दिस CLS हमने जो पास करी है यहाँ पे, राइट, एज इन जो पैरामीटर जा रहा है, वी वांटेड टू एक्सेस क्लास एट्रीब्यूट्स और अदर क्लास मेथड्स फ्रॉम इनसाइड द वैलिडेटर, राइट। तो इसका मेन फंक्शनलिटी यही है CLS पास करने के यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास मेथड है तो सबसे पहले इसमें क्लास ही जाएगी एज इन पैरामीटर, राइट। थोड़ा लाइक ऊप्स वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, बट यस, हम यहाँ पे एक वी स्ट्रिंग एक पैरामीटर सेट करेंगे जो कि टाइप एनी होगा, टाइप हिंटिंग के तरीके। तो हम पहले तो चेक करेंगे कि अगर स्ट्रिंग पास करी है कि नहीं, अगर पास करी है तो उसमें से हमें क्लीन करना है, तो हम क्या करेंगे, regex लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में से जो भी हमारे पास स्पेसेस है या फिर सिंबल्स है, कॉमास है, उसको रिमूव कर देगा, राइट। हमें रिटर्न करना है यहाँ पे जो भी क्लीन स्ट्रिंग है वो। अगर स्ट्रिंग ही रिटर्न हो रही है तो टाइप कन्वर्जन करके वो लाइक पाइडेंटिक उसको इंट में कन्वर्ट कर लेगा, राइट। तो एक आइटम पास करके देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में। इसका नेम होगा मैकबुक, राइट। उसकी प्राइस लिख देते हैं। रियल वर्ल्ड सिमुलेशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा सेम जो एग्जांपल रखा था, स्पेस दे दिया 499। फिर इसको देखते हैं कि क्या आता है प्रिंट करके, क्या सेट हुआ है। तो आइटम डॉट क्या था, प्राइस, प्राइस पे वैलिडेशन किया है ना, तो देखते हैं। तो क्या हुआ, पहले हमने ये जो स्ट्रिंग पास करी है उसमें देर आर स्पेसेस, सिंबल्स एंड कॉमर्स, राइट। तो बिफोर अगर हमने ये लिखा नहीं होता मोड इक्वल्स बिफोर, राइट, तो क्या करता है, इसको बाय डिफॉल्ट आफ्टर मान लेता पाइडेंटिक। तो सबसे वो पहले वो टाइप चेकिंग करने जाता, तो देखता कि इसको फ्लोट चाहिए, लेकिन हमने स्ट्रिंग पास करी है और स्ट्रिंग में भी हमने ऐसे कॉमा स्पेसेस वगैरह डाल रखे, तो यहाँ ब्रेक कर जाता, तो टाइप कन्वर्जन कर ही नहीं पाता, राइट। तो ब्रेक कर जाता। तो हमने क्या किया, ये टाइप कन्वर्जन पहले करने से पहले ही हमने मोड इक्वल्स बिफोर सेट कर लिया, ताकि वो टाइप कन्वर्जन पहले करने से पहले डेटा क्लीन हो जाए और एक क्लीन स्ट्रिंग जाए वहां पे, राइट।
So this was main functionality of मोड इक्वल्स बिफोर और फील्ड वैलिडेटर की एक और चीज देखती है कि आफ्टर कैसे काम करता है, राइट। तो डिफॉल्ट मोड जैसे मैंने बोला कि वो आफ्टर ही होता है, तो इसका मतलब है पाइडेंटिक ने ऑलरेडी इंश्योर कर लिया है कि सब डेटा का टाइप सही है, राइट। स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है एंड इंटीजर कोई भी ऐसे कन्वर्जन करना है तो उसने लॉजिक सही कर लिया है, बिजनेस लॉजिक लगाना है, राइट, जो भी आपने पास किया हो। तो यहाँ आपको टाइप चेकिंग की चिंता नहीं करनी है, राइट। तो एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम एक यूजर प्रोफाइल क्लास बनाएंगे जहाँ पे यूजर नेम इंटीजर स्ट्रिंग होगा एंड एज विल बी इंटीजर। यूजर प्रोफाइल, राइट, बेस मॉडल, राइट। यहाँ पे दो फील्ड होगी, यूजर नेम होगा जो कि स्ट्रिंग जाएगी, एक एज करके फील्ड होगी जो कि इंटीजर होगी, राइट। हम फील्ड वैलिडेटर सेट करेंगे यहाँ पे डेकोरेटर यूज करके। किस पे वैलिडेट करने है वो डालना होता है सबसे पहले, तो एज पे हमें चाहिए वैलिडेशन। एंड मोड अगर नहीं भी लिखोगे ऐसे आफ्टर तो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आफ्टर ही होता है अगर कुछ भी पास नहीं करोगे, राइट। एक क्लास मेथड लिखनी पड़ेगी कि हमें क्या वैलिडेट करना है। एक मेथड लिखेंगे वैलिडेट एज लिमिट, राइट। तो हमें यहाँ पे सिंस ये एक क्लास मेथड में डेकोरेटेड विद द क्लास मेथड, इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट इज ऑलवेज द क्लास इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे CLS हमने पास कर दिया है एंड नॉट एन इंस्टेंस, राइट। तो CLS refers to the class of user profile itself, right? So this is एक string लेंगे इसका input जो कि टाइप any होगा एंड इसमें चेक करेंगे कि अगर v is less than 18 है string तो फिर हमें एरर रेस करना है, वैल्यू एरर इसमें लिख देंगे एज कांट बी, नहीं है तो फिर रिटर्न वी कर दो, राइट। तो इसका हमने बेसिक फंक्शनैलिटी चेक कर ये करना चाहते हैं कि अगर यूजर ने इंटीजर पास कर दिया है, जैसे 18 स्ट्रिंग में पास कर दिया है, तो फिर पहले तो वो उसका टाइप कन्वर्जन कर ले, उसको इंटीजर में बना ले एंड इंटीजर बनाने के बाद उसको एज इन कुछ हमारा बिजनेस लॉजिक है यहाँ पे एज लिमिट का कि अगर एज अगर 18 से नीचे है तो फिर वैल्यू एरर हो जाए। सो दिस इज द यूज ऑफ आफ्टर ऑप्शन इन फील्ड वैलिडेटर। तो एक यूजर डेटा पास करके देखते हैं, यूजर प्रोफाइल में जाएगा, यूजर नेम ले लेते हैं आकाश, इसमें डालेंगे एज, अगर किसी ने 25 भी ऐसे स्ट्रिंग में पास कर दिए तो भी चलेगा क्योंकि टाइप कन्वर्जन पहले हो जाएगा वहां पे, राइट। प्रिंट करते हैं कि क्या सेट हुआ वैल्यू एज में, तो यूजर डॉट, तो देख सकते हो 25 उसने सेट कर लिया है इंटीजर। तो दिस इज ऑल अबाउट फील्ड वैलिडेटर आफ्टर कैसे यूज करना है। एक और अप्रोच होता है यहाँ पे दैट इज एनोटेटेड। तो अगर सोचिए कि आपके पास 10 अलग अलग मॉडल्स, राइट, पाइडेंटिक मॉडल है, तो और आपको सब में यूजर नेम वैलिडेट करना है, तो हर जगह आपको यूजर नेम के लिए सेम लॉजिक लिखोगे, राइट, दिस काइंड ऑफ फील्ड वैलिडेशन करोगे नहीं ना, राइट, कि आपको 10 बार लिखना पड़ेगा सेम थिंग। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, राइट, हमें यहाँ पे यूज करेंगे एक और अप्रोच होता है दैट इज एनोटेटेड का यूज करेंगे। तो एनोटेड आपको अलाउ करता है कि कस्टम टाइप आप बना लो जिसमें एक लॉजिक भी उसके साथ बाइंडेड हो, काइंड ऑफ पैक्ड हो लॉजिक उसमें चेक करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक मॉडल बहुत ही क्लीन वे में आप लिख सकते हो। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो वील हैव टू क्लासेस पाइडेंटिक जिसमें एडमिन एक स्टूडेंट होगा, सो स्टूडेंट एंड एडमिन दोनों होगा, जहाँ पे यूजर आईडी भी होगी एंड प्रोफाइल नेम भी होगी, राइट। दोनों में हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग हो एंड देन फील्ड उसका लाइक शुडंट बी लेस देन 3। फील्ड वैलिडेटर भी यूज करेंगे इंश्योरिंग कि उसमें कोई स्पेसेस ना हो, राइट। तो अगर हमें ये लिखना है तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज एनोटेटेड हियर। तो हम सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे टाइपिंग से एनोटेटेड, एनोटेटेड यूज कर लिया, देन पाइडेंटिक की कुछ लाइब्रेरीज स्टैंडर्ड इंपोर्ट करते हैं। आफ्टर वैलिडेटर होता है, हम बताऊंगा कि बिफोर वैलिडेटर भी एक चीज होती है वो कैसे काम करती है। फील्ड भी डाल दिया हमने यहाँ पे, राइट। तो एक बिजनेस लॉजिक पहले लिखते हैं कि एनोटेटेड कैसे काम करता है विथ फील्ड वैलिडेटर। तो हम एक क्लास बनाएंगे, राइट, एडमिन होगा, हो जाएगा बेस मॉडल। इसमें हम एक इसका एक ही फील्ड होगी दैट इज यूजर आईडी, और ये एक हम स्ट्रिंग असाइन कर देंगे इसको, राइट। एक और क्लास बनाते हैं ऑफ स्टूडेंट, राइट, इसका लाइक प्रोफाइल फील्ड होगी प्रोफाइल नेम, इसको भी हम स्ट्रिंग असाइन कर देंगे, राइट।
एंड देन हमें हर एक क्लास में जाके एक फील्ड वैलिडेशन भी करना है। तो फील्ड वैलिडेटर यूज करने के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच एक डेकोरेटर यूज करते हैं हम। किस पे हमें वैलिडेशन करना है, तो यहाँ पे हमें यूजर आईडी पे वैलिडेशन करना है। मोड इज आफ्टर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपल एग्जांपल, राइट। एक क्लास मेथड लिखनी पड़ेगी हमें। एक मेथड असाइन करते हैं कि हमें चेक करना है कि इंश्योर करें कि नो स्पेसेस विल बी अलाउड हियर, राइट। तो इसमें एक स्ट्रिंग जाएगी। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है इसमें, तो फिर रेस एक एरर करेंगे हम, वैल्यू एरर स्पेसेस नॉट, और हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से वी डॉट लोअर। लोअर भी हमने कर दिया यहाँ पे, राइट। तो हमने एक काइंड ऑफ वैलिडेशन स्टेप भी लग दिया। सेम थिंग हमें यही चीज नीचे भी करनी है, राइट। तो देख सकते हो कि यूजर आईडी की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल नेम पे करना है वैलिडेशन। तो देख सकते हो कि हमने सेम सेम चीज करनी पड़ी दोनों लाइक मॉडल्स में, राइट। तो व्हाई डोंट वी क्रिएट एनोटेटेड यूज ऑफ शॉर्टन दिस कोड। तो देखते हैं कि इसको शॉर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे मेथड बनाई है, इसको बाहर लेके जाएंगे हम यहाँ से, राइट। बाहर लेके चले गए। हमें एक यूजर नेम करके एक वेरिएबल लिखते हैं, राइट। उसमें हम पास करेंगे एनोटेटेड लिख के, उसमें हम देंगे एनोटेशन में स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए, राइट। यहाँ पे क्योंकि एनोटेटेड है तो यहीं जाएगा, राइट। यहीं पे यूज होगा, ये तो हट जाएगा पूरा, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, दोनों जगह स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लगेगा हमें। फील्ड भी यूज करते हैं इसमें, यहाँ पे मिन लेंथ हम दे देंगे 3, राइट। 3 से नीचे होगा तो भी एरर थ्रो कर देगा, राइट। एक हमें यूज करना पड़ेगा आफ्टर वैलिडेशन, एक आफ्टर वैलिडेटर यहाँ पे, जहाँ पे हमें इस फंक्शन को पास कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पे हमने एक ही वैलिडेटर यूज किया आफ्टर वैलिडेटर में, एंड देन वी बाइंडेड दैट थिंग इनटू एनोटेटेड। हमने उसको यूजर नेम में स्टोर कर लिया है। नाउ वी कैन यूज दिस एवरीवेयर, राइट। यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, अभी इसकी जरूरत है नहीं हमें। तो ये सेम सेम थिंग काम करेगा। देखा आपने कि कैसे हमने इतनी सारी लाइंस को रिमूव कर दिया, और नाउ द कोड लुक्स मच क्लीनर हियर, राइट। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि ये काम भी कर रहा है क्या। एडमिन में पास करेंगे यूजर आईडी, मिन लेंथ 3 लिखा है ना, 2 का मिन लेंथ डाल के देख लेते हैं, राइट। क्या एरर थ्रो करता है, प्रिंट करते हैं एडमिन डॉट यूजर आईडी। देखा आपने कि हमें तो वैलिडेशन एरर आ गया यहाँ पे कि अगर हमने फील्ड मिनिमम लेंथ 3 सेट कर रखा था। कुछ बड़ा स्ट्रिंग पास कर देते हैं अभिषेक। तो देखा हमने इसमें फील्ड वैलिडेटर का भी यूज कर लिया है, एंड कोड को भी काफी शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। तो आफ्टर फील्ड वैलिडेटर यहाँ पे यूज किया है। तो आफ्टर का मतलब है कि पहले वो टाइप चेकिंग स्ट्रिंग है कि नहीं वो उसको इंश्योर करेगा, देन उसको लाइक हमारे जो भी बिजनेस लॉजिक है यहाँ पे इंश्योर नो स्पेसेस उसको चेक करेगा। तो यहाँ पे इन एनोटेटेड वे, तो जैसे हमने आफ्टर वैलिडेटर का यूज किया है, एक बिफोर वैलिडेटर भी होता है, राइट। वो भी देखते हैं कैसे काम करता है। तो सिंपल है, सेम थिंग, मोड इक्वल्स बिफोर, कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पायडेंटिक के टाइप कोवर्जन के पहले ये चलता है। तो इसको यूज कैसे करना है, राइट। जब आपका एक रॉ डेटा हो कहीं से आ रहा हो, राइट, जो कि डर्टी फॉर्मेट में हो, तो मान लीजिए कि आपने मांगा है इंटीजर, पर यूजर ने वही कि स्पेसेस में डाल के उसने ऐसा रुपीज करके स्पेसेस में 500 पास कर दिया, राइट। पायडेंटिक स्टैंडर्ड वे भी इसको तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, राइट। टाइप कन्वर्जन हो नहीं पाएगा। तो टाइप कन्वर्जन करने से पहले आपको भी बिजनेस लॉजिक मिला है, तो आप जैसे यहाँ पे मोड इक्वल्स बिफोर लिखा था, वैसे ही आफ्टर बिफोर वैलिडेटर का यूज करके आप इसको क्लीन कर सकते हो, राइट। तो देखते हैं एक एग्जांपल। वही हमने टाइपिंग तो यहाँ पे एनोटेटेड आफ्टर वैलिडेटर का यूज कर लिया है। एक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बिफोर वैलिडेटर, एक फंक्शन लिखते हैं, वही हम एनोटेटेड का ही यूज करते हैं यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, डेफिनेशन करेंगे हम। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा था बाहर, तो हमें वैसे ही एक फंक्शन लिखना पड़ेगा क्लीन करेंसी करके। वही सेम मेजरेबल रखते कि 500 हमने स्पेसेस और ऐसे आर एस करके लिख दिया, राइट। क्लीन करेंसी, जिसमें एक पैरामीटर जाएगा वी ऑफ टाइप एनी। एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर ये स्ट्रिंग है कि नहीं, रिटर्न करो स्ट्रिंग है तो
वी को वही हमें इसको क्लीन करना है जैसे मैंने पहले दिखाया था, रुपीस और स्पेस डाल के 500, राइट, इसको क्लीन करना है। तो वी डॉट हम रिप्लेस करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रिंग मेथड। हम क्या करेंगे, आर एस डॉट जो कि स्पेस के साथ आ रहा है उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग में पास कर रिटर्न कर देंगे। एंड एक और रिप्लेस करते हैं कि अगर कॉमा भी है तो भी वो रिप्लेस हो जाए विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। इसके बाद हमें रिटर्न स्ट्रिंग पास करिए तो ये करो, एंड अगर कोई किसी ने अगर स्ट्रिंग नहीं है, अगर उसने इंटीजर पास कर दिया तो रिटर्न करो वी, राइट। एक फंक्शन बना लिया। अभी हमें एनोटेटेड का यूज करना है तो हमें एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, क्लीन इंटीजर, नाम लिख देते हैं इसका। वही एनोटेटेड में लिखना पड़ेगा कि क्या चाहिए हमें, तो इंट चाहिए, राइट। और बिफोर वैलिडेटर में बाइंड कर देते हैं उसको, द फंक्शन जो कि अब आपने लिखा है, राइट। एक क्लास बनाते, प्रोडक्ट, इसमें जाएगा बेस मॉडल, प्राइस जाएगी क्लीन इंट करके, प्रोडक्ट में जाएगा प्राइस, पास कर देते हैं हमें वही कि हाँ रुपीस ऐसा करके 500 पास कर दिया है। या फिर चलो एक कॉमा भी है हमारे पास वैलिडेशन, तो 1500 पास कर दिया है। एंड देन लेट्स सी कि प्रिंट करके प्राइस क्या सेट हुई है। अच्छा, तो यस वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू इंटीजर फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने एज इन रुपीज में करके दे दिया था। अगर किसी ने ऐसा भी पास करेगा तो फिर वैल्यू एनोटेशन की जरूरत ही नहीं है हमें, ना कि फील्ड वैलिडेटर की जरूरत है। किसी ने अगर इंटीजर ही पास किया तो इंटीजर ही स्टोर हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पे इंश्योर किया है। तो दिस इज द वे यू यूज फील्ड वैलिडेटर्स, मोड कैसे यूज करते हैं, राइट। दोनों का डिफरेंस फील्ड बिफोर एंड आफ्टर वैलिडेटर का देखा कि अगर बिफोर वैलिडेटर का यूज करना है तो फिर टाइमिंग उसकी ये है कि टाइप कन्वर्जन से पहले वो चले, राइट। जहाँ पे आपको डेटा क्लीनिंग कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी हो तो बिफोर वैलिडेटर काम आएगा, जहाँ पे रॉ इनपुट जाता है। आफ्टर वैलिडेटर का काम ये है कि वो टाइप कन्वर्जन के बाद किक इन करता है, राइट। डेटा पास हो चुका है वहां पे, एंड देन आपको कुछ स्ट्रिक्ट बिजनेस रूल लगाना है तो आफ्टर वैलिडेटर को वहां पे यूज होगा, राइट। So this was all about field validators. So let's move on with the next topic, that is model validators. तो समझते हैं कि मॉडल वैलिडेटर की जरूरत क्यों है, राइट। तो सोचिए अगर आपके पास एक यूजर साइन अप फॉर्म है, राइट। वहाँ पे आपने एक फील्ड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपने देखा होगा, दो फील्ड होती है, वो वैलिडेट कर लिए है, राइट, यूजिंग फील्ड वैलिडेशन। लेकिन आप ये कैसे चेक करोगे कि ये दोनों फील्ड सेम है या नहीं है, राइट। फील्ड वैलिडेटर तो आपको सिर्फ एक पर फील्ड वैलिडेशन करके दे देगा, उसको अड़ोस पड़ोस में जो भी फील्ड्स है उसके रिलेशनशिप से तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर रिलेशनशिप चेक चेक करनी हो या फिर कुछ इंटर फील्ड कुछ चेक करना हो, कुछ लॉजिक चेक करना हो, तो अब आप कैसे चेक करोगे, राइट। वो चेक करोगे वाया मॉडल वैलिडेटर। इसमें भी दो चीज होती है, मोड इक्वल्स बिफोर होता है जब आप एक रॉ डिक्शनरी के साथ डेटा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, बिफोर पाइडेंटिक इवन किक्स इन इट्स लाइक फील्ड वैलिडेशन एंड पासिंग, तब मोड इक्वल्स बिफोर सेट करते हो। एंड मोड इक्वल्स आफ्टर, जब पाइडेंटिक ने सारी फील्ड इंडिविजुअली वैलिडेट कर चुका हो, राइट, तब आपको उन्हें आपस में बस कंपेयर करना हो, राइट, तब आप मोड इक्वल्स आफ्टर सेट करोगे। तो देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि कैसे ये होता है। वही एग्जांपल होगा जो हम यहाँ पे देख रहे थे, लाइक पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, इस दोनों में कैसे हम चेक करेंगे कि दोनों सेम है या नहीं है, राइट। तो वी स्टार्टेड बाय importing standard pydantic libraries, देन एक pydantic क्लास बनाएंगे हम मॉडल यूजर साइन अप, राइट, जिसमें जाएगा बेस मॉडल। इसमें दो फील्ड होगी, पासवर्ड जो कि स्ट्रिंग, एंड कंफर्म पासवर्ड जो कि ये भी एक स्ट्रिंग, राइट। इसमें हमें इन दोनों के बीच वैलिडेशन करना है तो फिर एक हमें डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, मॉडल वैलिडेटर। इसमें हम मोड दे देंगे आफ्टर, right, after all the data is parsed and validated we would check the interfield relationships। एक मेथड बनाएंगे हम यहाँ पे, चेक पासवर्ड
मैच, जिसमें हमें सेल्फ देना पड़ेगा। आप सोचो कि सेल्फ की जरूरत क्यों है यहाँ पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऊप्स कैसे काम करता है, राइट, और पाइडेंटिक में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो मॉडल वैलिडेटर को पाइडेंटिक एक पोस्ट प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्म समझता है, राइट। व्हेन यू राइट दिस मॉडल इक्वल्स आफ्टर, पाइडेंटिक रन्स दिस आफ्टर ऑल द फील्ड्स आर पास्ड एंड वैलिडेटेड, राइट। अब इस स्टेप के बाद पाइडेंटिक क्या एक्सपेक्ट करता है, पाइडेंटिक एक्सपेक्ट करता है कि ठीक है, अब मुझे अब फाइनल मॉडल कैसे दिखना चाहिए, अब मुझे रिटर्न तो करो। तो फिर आपको यहाँ पे रिटर्न भी आपको सेल्फ ही देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, अगर कुछ नहीं है तो भी। तो अगर आपको कुछ म्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्म भी करना हो तो भी यहाँ पे एक सेल्फ देना हो, जैसे आपको एक पासवर्ड में स्ट्रिप करना हो या फिर कंफर्म पासवर्ड में स्ट्रिप स्ट्रिप करना हो, राइट। तो भी आपको रिटर्न टाइप सेल्फ ही होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज मोड इक्वल्स आफ्टर है यहाँ पे, वरना ये एरर थ्रो कर देगा। फील्ड वैलिडेटर में क्या होता है, एक फील्ड को क्लीन करो, उसको रिटर्न करो, दैट फील्ड वो चलता है, राइट। मॉडल में ऐसा नहीं होता, मॉडल वैलिडेटर में पूरे मॉडल को चेक करना होता है, पूरे मॉडल को मॉडिफाई करो। तो रिटर्न भी यहाँ पे पूरा मॉडल ही होना चाहिए, दैट इज व्हाई सेल्फ इज important here. Self tells the type checker that function returns itself, like user sign up है तो उसको ही रिटर्न कर रहा है, राइट। सेल्फ रिटर्न करना वहां पे जरूरी नहीं है जब मोड इक्वल्स आपने बिफोर सेट कर रखा हो, राइट। वहां पे सेल्फ रिटर्न जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मोड इक्वल्स बिफोर का मतलब यही है, पाइडेंटिक का अपना जो फील्ड वैलिडेशन और पार्सिंग है, उसके पहले ही आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो डेटा के साथ, राइट। तब आपको सेल्फ की जरूरत नहीं है रिटर्न करने की, तब आप बस डेटा को प्रोसेस करो, डेटा को ही पैरामीटर में लो, यहाँ पे इनपुट में भी सेल्फ की देने की जरूरत नहीं जब आपने मोड इक्वल्स बिफोर सेट कर रखो, राइट। वो भी एक एग्जांपल देखेंगे। लेट्स जस्ट नाउ फोकस ऑन मोड इक्वल्स आफ्टर, राइट, इन दिस करंट एग्जांपल। तो सेल्फ तो दे दिया हमने यहाँ पे, अब हमें चेक करना पड़ेगा सेल्फ डॉट पासवर्ड, अगर ये सेम नहीं है सेल्फ डॉट कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो हम क्या करेंगे, रेज करेंगे एक वैल्यू एरर, राइट। अगर पासवर्ड मैच कर रहे हैं तो हमें रिटर्न करना है सेल्फ, राइट, जैसे मैंने बोला। ट्राई करते हैं एक यूजर वेरिएबल में पास करके चीजें, तो मैंने बना रखा है तो, राइट, देख सकते ब्रेन बाइट 1 2 3 कंफर्म पासवर्ड में रॉन्ग पासवर्ड, ऐसे दोनों अलग अलग दे दिया, राइट। देखते आना तो चाहिए यहाँ पे एरर, तो एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे हम, वैल्यू एरर एस ई प्रिंट करो, जो यहाँ पे ये नहीं देना होता, ठीक है, यूजर साइन अप, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे कि एक वैलिडेशन एरर आ चुका है कि हमने जैसे बोला दोनों पासवर्ड मैच नहीं हो रहे, तो वो एरर यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ मॉडल वैलिडेटर कि कैसे आप इंटरफील्ड कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास एक कोई बुकिंग सिस्टम है, राइट। तो आप चाहोगे क्या कि ऐसी फ्लाइट बुक हो जाए जहाँ पे रिटर्न डेट उसकी डिपार्चर डेट से पहले हो, राइट। ये तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है ये, राइट। तो इसको लॉजिक को हम मॉडल वैलिडेटर में कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं, राइट। तो हमें कुछ इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे इसके लिए। बुकिंग सिस्टम बना रहे, फ्लाइट बुकिंग सिस्टम यहाँ पे, डेट टाइम करेंगे, इंपोर्ट डेट टाइम। पैडेंटिक का हमने तो यहाँ पे मॉडल वैलिडेटर कर ही लिया है, राइट, सेल्फ करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक क्लास बनाते हैं ट्रैवल बुकिंग, जहाँ पे बेस मॉडल रहेगा। हम डेस्टिनेशन यहाँ पे 3 फील्ड रखेंगे, यहाँ पे रखा है मैंने, तो लेट्स जस्ट डू दैट। डेस्टिनेशन होगा स्ट्रिंग, स्टार्ट डेट होगी डेट, एंड डेट होगी डेट, राइट। मॉडल वैलिडेटर के जरिए हम चेक करेंगे कि एंड डेट अगर स्टार्ट डेट से पहले आ जा रहा है तो फिर हम रिटर्न करेंगे कि स्टार्ट डेट इज नॉट इन करेक्ट वे और करेक्ट फॉर्मेट। तो लेट्स जस्ट डू दैट, मॉडल वैलिडेटर यूज करेंगे, मोड रखेंगे हम आफ्टर, राइट। एक मेथड लिखते हैं वैलिडेट डेट्स, राइट। इसमें सेल्फ ही जाएगा क्योंकि हम इंटरफील्ड और पूरे मॉडल को आफ्टर
डेटा टाइप चेकिंग एंड पासिंग को यूज कर रहे हैं तो सेल्फ ही लगेगा यहाँ पे, राइट। इफ सेल्फ डॉट एंड डेट, राइट, सेल्फ डॉट स्टार्ट डेट, अगर उसकी एंड डेट स्टार्ट डेट से पहले है तो फिर हमें रेस करना है वैल्यू एरर। क्या करेंगे, एंड डेट शुड बी आफ्टर स्टार्ट डेट, राइट। ये हम एरर थ्रो कर देंगे। अगर ये सही है तो फिर हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा सेल्फ ही यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ, राइट। तो एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो हमने एक ट्रैवल बुकिंग क्लास बनाई है ऑफ पाइडेंटिक। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन गोवा जा रहे हैं हम लोग। स्टार्ट डेट देख सकते हो, एंड डेट इसमें तो कोई चेक करने की, इसमें तो कोई एरर आएगा नहीं, राइट, बिकॉज एंड डेट तो बाद में ही है स्टार्ट डेट के। तो प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि सेट हो गया होगा, एरर तो नहीं आएगा। डेट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ओके, डेट टाइम नहीं, हमें डेट करना है। तो देखो गोवा, क्योंकि एंड डेट बाद में थे, अगर यहीं पे अगर मैं उसको 19 लिख दूं, राइट, तो देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि उसने बोल इंटरफील्ड चेक कर लिया और देन इज लाइक इट इज थ्रोइंग द एरर। वापस 21 लिख देते हैं, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं कि कंडीशनल वैलिडेशन कैसे होता है। कि इसमें हम क्या करेंगे, एक मेंबरशिप का एग्जांपल लिखेंगे, राइट। तो उसमें कई बार वैलिडेशन की कोई एक तीसरी फील्ड पर भी डिपेंडेंट होती है, लाइक वैलिडेशन हमें कोई तीसरी डिपेंडेंट फील्ड पे भी करना पड़ता है। कि हम एक यहाँ पे एक क्लास क्लास बनाएंगे ऑफ आइडेंटिक। इसमें तीन फील्ड होगी, राइट। नेम होगा यहाँ पे, इस प्रीमियम होगा फील्ड, एंड एक मेंबरशिप फील्ड होगी, मेंबरशिप आईडी, राइट। हम एक एग्जांपल के जरिए देखना चाहते हैं कि कोई अगर यूजर है तो उसका अगर इस प्रीमियम, ये जो फील्ड है ये बुलियन फील्ड होगी, ये अगर ट्रू है तो मेंबरशिप आईडी तो होनी ही चाहिए, राइट। उसको अगर फॉल्स, अगर इस प्रीमियम फॉल्स है तो हम उसको एम्प्टी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेंबरशिप आईडी यहाँ पे एज इन एक ऑप्शनल फील्ड होगी, जो कि डिपेंडेंट होगी ऑन दिस, इस प्रीमियम फीचर पे, राइट। अगर कोई इस प्रीमियम ट्रू करता है तो मेंबरशिप आईडी वहाँ पे होनी ही चाहिए। अगर नहीं है इस प्रीमियम, वो यूजर नहीं है, प्रीमियम नहीं है यूजर, तो फिर हम मेंबरशिप आईडी को नन सेट कर देंगे, राइट। तो एक ऑप्शनल फील्ड होगी यहाँ पे। सो दिस इज वन एग्जांपल, लेट्स सी कैसे करते हैं इसको, राइट। तो हमें तो पहले ऑप्शनल फील्ड बनानी है, तो फिर हम टाइपिंग के जरिए इंपोर्ट करेंगे ऑप्शनल, राइट। लेट जस्ट हैव अ आइडेंटिक क्लास मेंबर, बेस मॉडल जाएगा यहाँ पे। इसमें होगी तीन फील्ड जैसे ऊपर बताया था। नेम होगा जो कि स्ट्रिंग में जाएगा। एक इस प्रीमियम करके बुलियन टाइप होगा इसका। मेंबरशिप आईडी होगी यहाँ पे, इसलिए होता हूँ, जो कि एक ऑप्शनल फील्ड होगी, राइट। तो हम ऑप्शनल फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे ऑप्शनल में क्या टाइप है इसका, स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर पास नहीं करोगे तो नन। और ये डिपेंडेंट है ऑन इस प्रीमियम, राइट, इस पे ये कंडीशनल फील्ड पे डिपेंडेंट है। तो देखते हैं कैसे वैलिडेट करते हैं। एक तो हमें डेकोरेटर लिखना पड़ेगा पहले, तो मॉडल वैलिडेटर, राइट। उसमें लिखना पड़ेगा कि मोड क्या है हमारा, आफ्टर। सिंस मोड आफ्टर है तो देख सकते हो हमें सेल्फ रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। दैट इज वी नीड टू रिमेम्बर। एक क्लास मेथड लिखते हैं आईडी, इसमें जाएगा सेल्फ इटसेल्फ, द क्लास इटसेल्फ। देन हमें चेक करेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट इज प्रीमियम जो है, तब एरर करना है जब जब ये ट्रू हो और ये एम्प्टी हो, राइट। यहाँ पे कुछ पास नहीं किया हो तो हमें एरर थ्रो करना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रू होनी चाहिए, एंड दिस शुडंट बी ट्रू। तो एंड नॉट सेल्फ, मतलब ये यहाँ पे कुछ दिया नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए, दैट व्हाट आई मेंट। मेंबरशिप आईडी, अगर ऐसा है तो रेज करो वैल्यू एरर। क्या करोगे, प्रीमियम अकाउंट शुड हैव मेंबरशिप आईडी, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इट्स फाइन। हम चाहते हैं कि आप बस रिटर्न करो खुद को, सेल्फ।
देखते हैं एरर थ्रो करता है कि नहीं, पास करके देखते हैं। तो नेम है अपना सुरेश, एंड ये प्रीमियम है। अगर ये प्रीमियम है लेकिन हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है मेंबरशिप आईडी इसका, तो फिर इसका नन टाइप सेट हो गया होगा, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू ट्रू दोनों ट्रू, देन प्रीमियम अकाउंट शुड हैव मेंबरशिप आईडी, ये थ्रो हो जाएगा एरर, राइट। देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, मतलब उसने बाय डिफॉल्ट प्रीमियम यूजर नहीं है, तो फिर इसको मेंबरशिप आईडी उसने नन असाइन कर दी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फील्ड लाइक मॉडल वैलिडेटर्स। तो अभी तक तो हमने मोड इक्वल्स आफ्टर सेट करके एग्जांपल्स देखे थे, राइट, जहाँ पे पाइडेंटिक जो की डेटा आ रहा था उसको टाइप कन्वर्जन या फिर फील्ड कन्वर्जन के बाद जाके हम कुछ चेकिंग कर रहे थे, राइट। तब जाके हम उसको सेल्फ रिटर्न करना पड़ता था, राइट। लेकिन मोड इक्वल्स बिफोर में क्या होता है कि आपके पास कोई डेटा कहीं से आ रहा होगा, राइट, लेकिन आप उसको कुछ चेंज करना चाहते हो, वहां पे चेंजेस बिफोर पाइडेंटिक इवन कन्वर्ट्स इट इनटू फील्ड और इवन चेक्स इट्स टाइप, राइट। तो यहाँ पे मोड इक्वल्स बिफोर का काम आ जाता है, जहाँ पे आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग करना पड़े या फिर कुछ चेंजेस करने पड़े डेटा बिफोर द पाइडेंटिक इवन किक्स इन, राइट। तो ये मोड इक्वल्स बिफोर का काम है। तो एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे हम कैसे वो काम करता है। बिफोर दैट चीज समझनी पड़ेगी कि मोड इक्वल्स बिफोर जब आप करते हो, राइट, तब आप सोचोगे कि मोड इक्वल बिफोर तो जैसे फील्ड वैलिडेटर काम करता है वैसे ही काम करेगा, राइट। देन व्हाट इज द नीड ऑफ यहाँ पे मॉडल वैलिडेटर। तो देखिए क्या होता है, फील्ड वैलिडेटर जो होता है वो पर फील्ड काम करता है, राइट। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे यहाँ पे फील्ड वैलिडेटर देख रहे थे, राइट, जहाँ पे मोड इक्वल्स बिफोर कर दिया था। लेकिन ये पर फील्ड चल रहा है, यहाँ पे तुम एक ही फील्ड डाल सकते हो, उस पे कुछ वैलिडेशन कर सकते हो, दूसरी फील्ड करनी है तो दूसरा लिखो आप, ऐसे ही फील्ड वैलिडेटर उसके लिए, राइट। लेकिन मॉडल वैलिडेटर में क्या होता है कि वो पूरे के पूरा डेटा ही को ही वो चेक करता है, एंड वहां पे आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्स चीजें भी लिख सकते हो, मल्टीफील्ड ऑपरेशन भी कर सकते हो वहां पे, राइट। तो आप अ, इसका मेन एडवांटेज ऐसे समझिए कि जब आपको डेटा कहीं से आ रहा होगा, राइट, वहां पे दो तीन फील्ड होगी, और उन फील्ड को एक साथ आपको चेक करना हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो फिर आप इंडिविजुअली फील्ड वैलिडेटर को यूज करके लिखने से अच्छा है आप एक मॉडल वैलिडेटर लिख दीजिए वहां पे। मोड इक्वल्स बिफोर सेट करके आप बिफोर डेटा जब आने से लाइक पाइडेंटिटी करने से पहले ही आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फील्ड वैलिडेटर जिसका मोड बिफोर सेट करते हैं, एंड जहाँ पे आप मॉडल वैलिडेटर जिसका मोड बिफोर सेट करते हैं, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये काम करता है। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे सेम आपको कोई क्लीन करेंसी करनी हो, राइट। तो फिर कैसे करोगे आप विद मॉडल वैलिडेटर। तो पहले तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट क्या करने हैं, यहाँ पे कर ही चुके हैं हम लोग, राइट। तो एक क्लास बनाते हैं ऑफ प्रोडक्ट जो कि होगी बेस मॉडल, राइट। इसमें होगा नेम, एक वेरिएबल स्ट्रिंग, प्राइस होगा जो कि होगा फ्लोट, राइट। हमें प्राइस को चेक करना है बेसिकली, तो फिर हम मॉडल वैलिडेटर लगाएंगे। हम मोड लिख देंगे बिफोर। तो देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड वैलिडेटर की तरह हमें यहाँ पे कोई फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चेंज करना है, हम पूरा का पूरा डेटा को ही चेंज कर सकते हैं या फिर एक कोई एक फील्ड को भी चेक कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे, राइट। जितनी भी चाहिए उतनी फील्ड हम चेंज कर सकते हैं। क्लीन फ्रीक्वेंसी लिखते हैं लाइक करेंसी, यहाँ पे जाएगा द क्लास ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एंड डेटा, राइट। एक हम पहले तो रॉ, तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं यहाँ पे जो भी डेटा जा रहा है उसमें प्राइस सही से सेट है कि नहीं, राइट। तो हम पहले तो रॉ जो भी आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डेटा डॉट अज्यूम कर रहे हैं कि ये डिक्शनरी ही होगी, तो डेटा डॉट गेट प्राइस, राइट। इफ इस इंस्टेंस इसका इंस्टेंस स्ट्रिंग है, राइट। अगर ये स्ट्रिंग है तो फिर क्या करो, क्लीन करनी है तो फिर हमें यहाँ पे वही कॉमास एंड सिंबल्स के लिए ही करते हैं अभी के लिए। तो रॉ डॉट रिप्लेस डॉलर साइन को हटाएंगे विथ एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्लेस, कॉमा को भी हटाएंगे विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट।
फिर हम यहाँ पे वापस डेटा में जाके उसको सेट कर देंगे, प्राइस इक्वल्स ये फील्ड रॉ, राइट, जो कि हमने ट्रांसफॉर्म कर दी है। हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे डेटा को ही, राइट, हमें सेल्फ रिटर्न करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम अब बिफोर काम कर रहे हैं इसको, तो पाइडेंटिक को बस डेटा ही चाहिए, तो फील्ड सेट करने से पहले या वैलिडेशन करने से पहले डेटा उसको मिल जाएगा, एंड तो फिर यहाँ पे सेल्फ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो पी ले लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल, इसमें प्रोडक्ट जाएगा, जिसका नेम अभी के लिए रख देते लैपटॉप, राइट, प्राइस पास कर देंगे हम, स्ट्रिंग में जाएगी, तो एक डॉलर हमने लिखा है डॉलर साइन के लिए, तो डॉलर साइन, एंड कोमा भी डाल देते हैं, 200, राइट, ये प्राइस चलेगी। अभी देखते हैं पी को प्रिंट करके क्या आता है। देख सकते हो यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया इसको, राइट, डेटा को, एंड इसके बाद इसने टाइप लाइक फील्ड कन्वर्जन कर लिया एंड टाइप मैचिंग भी कर ली। तो फिर ऐसे मोड इक्वल्स बिफोर का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट, जहाँ पे लेट सपोज आपको, ऐसा एग्जांपल तो होगा नहीं बट फॉर द सेक, कि एक यूजर साइन अप जैसे यहाँ पे बनाया था कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड, वही वाला एग्जांपल, राइट। यहाँ पे अगर यूजर आपको ये पासवर्ड की जगह आपको बस पास दे दे, कंफर्म की जगह बस आपको कंफर्म, पासवर्ड की जगह कंफर्म दे दे, तो फिर आपको कैसे उसको चेंज करना है, राइट। मतलब बोलना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको ऐसे डेटा पास कर दे, राइट, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा कंफर्म क्या है, कंफर्म पासवर्ड क्या है, ऐसा कोई होगा नहीं, बट लेट्स हैव दिस एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल बिफोर कैसे काम करता है। हम वही यूजर साइन अप बनाएंगे यहाँ पे टू हैंडल दिस केस, राइट, बेस मॉडल, ऊपर वाला ही उठा लेते हैं, राइट, एक मॉडल वैलिडेटर लिखते हैं, डेकोरेटर, इसमें हम देखेंगे यूनिफ, इसको नाम दे देते हैं, एक मेथड बनाते हैं, इसमें लिखेंगे यूनिफाई पासवर्ड, कीज के साथ काम करेंगे, तो कीज, राइट, इसमें जाएंगे द मेथड इटसेल्फ, क्लास इटसेल्फ एंड डेटा, राइट, डेटा जो भी पास होगा उसके साथ हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो इफ अगर ऐसे पास करके दे रहा है कोई, तो पास लिख देंगे इन डेटा, कीज में है, तो फिर आप चेंज कर लो इसको, पासवर्ड चाहिए हमें, तो आप बस वहां से उसकी फील्ड जो भी, ये भी जो भी यहाँ से आ रहा होगा ना, इसको वह निकाल लेंगे हम, उसको पासवर्ड में सेट कर देंगे, डेटा डॉट पॉप पास, पासवर्ड की जो भी वैल्यू होगी, पास करके जो भी फील्ड की वैल्यू आ रही है वो स्टोर हो जाएगी। सेम थिंग विथ कंफर्म, डेटा पासवर्ड, डेटा, अभी हमें चाहिए कंफर्म पासवर्ड, राइट, ये वाली फील्ड चाहिए, डेटा में बस हमें कंफर्म मिला है, तो हम उसकी वैल्यू पॉप कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद हम रिटर्न डेटा ही करेंगे क्योंकि उसमें चेंजेस हुए हैं, हमें सेल्फ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज हैपनिंग बिफोर द इनिशियलाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन बाय पाइडेंटिक, राइट। तो हम देखते हैं यूजर क्या आता है, यूजर साइन अप, यही, इससे कोई कॉपी कर लेता हूँ, राइट, प्रिंट करते ही यूजर, अच्छा शायद ये तो एक इनबिल्ट यूज कर लिया, तो फिर हम पासवर्ड अंडरस्कोर पास कर देते हैं ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट, अभी चल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे कंफर्म वाला एरर आ रहा था, तो कंफर्म तो लिखना पड़ेगा ना बॉस, राइट, तो देख सकते हो यहाँ पे उसने प्रोसेस कर लिया। तो एज इन ऐसे एग्जांपल होंगे जहाँ पे आपको मोड इक्वल्स बिफोर सेट करना पड़ेगा। फील्ड वैलिडेटर के साथ इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो वही है कि लाइक इसका, लाइक फील्ड वैलिडेटर पर फील्ड डिपेंडेंट होती है, आपको पूरे डेटा के साथ अगर चेंजेस करने हो, या फिर जो भी इनपुट स्ट्रिंग आ रही हो, या फिर डिक्शनरी आ रही हो उसमें चेंजेस करने हो, तो फिर मॉडल वैलिडेटर यूज करना पड़ेगा विद बिफोर मोड, राइट। और
जब आप मोड इक्वल्स बिफोर कर देते हो तब आप मेजरली चाहते हो कि जो भी डेटा आ रहा हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो रिटर्न टाइप आप डेटा ही करोगे, क्योंकि तब तक पाइडेंटिक किक इन नहीं किया है, पाइडेंटिक ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाइक फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन या फिर टाइप चेकिंग करी नहीं है अभी तक, राइट? तब इसलिए आप डेटा रिटर्न कर सकते हो। लेकिन जब आप मोड इक्वल्स आफ्टर कर देते हो तब पाइडेंटिक ने ये वाले चेक्स तो कर लिए होंगे कि यहाँ पे ये फील्ड चाहिए तो ये तो होनी ही चाहिए यहाँ पे, राइट? उसने एक अपना स्कीमा वैलिडेशन बना लिया है, उसके बाद आप उसमें वैलिडेशन करना चाहते हो कि डेट्स में कुछ हेरा फेरी है, तो फिर आप वैल्यू एरर दे दो हमें, राइट? तो इसलिए हम आपको यहाँ पे फील्ड भी रिटर्न करनी, लाइक फील्ड में आपको सेल्फ भी रिटर्न करना जरूरी है, राइट? बिकॉज आइडेंटिटी को समझना ही पड़ेगा कि ठीक है बॉस, अगर आपने मोड आप कुछ वैलिडेशन करना चाहते हो तो फिर आप रिटर्न भी कुछ मुझे कुछ दो, राइट? तो फिर यहाँ पे सेल्फ होगा, दैट इज द मॉडल इटसेल्फ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल वैलिडेशंस। सो चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कंप्यूटेड फील्ड। सो पहले देखते हैं कंप्यूटेड फील्ड्स है क्या, राइट? तो सोचिए आपके पास एक मॉडल है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों फील्ड्स है, राइट? और आपको एक थर्ड फील्ड बनानी है, दैट इज फुल नेम। आपके पास ये करने के दो ऑप्शन है, एक तो आप डेटाबेस में खुद एक एक्स्ट्रा स्पेस खर्च करो फॉर फुल नेम टू स्टोर द डेटा, और दूसरा एक आप एक ऑन द फ्लाई जनरेट कैलकुलेट करो, राइट? पाइडेंटिक वी2 में हम कंप्यूटेड फील्ड डेकोरेटर का यूज करते हैं। सो इसका मेन फंक्शन ये है कि जब आप मॉडल को डंप करोगे या फिर जैसे इस मॉडल का जेसॉन जनरेट करोगे, राइट? तो ये जो कंप्यूटेड फील्ड होगी फुल नेम की, वो ऑटोमेटिकली वहां पे रजिस्टर हो जाएगी, राइट? पहले तो हमें कुछ स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। इंपोर्ट करेंगे बेस मॉडल एंड कंप्यूटेड फील्ड। फिर एक हम क्लास बनाते हैं फॉर आइडेंटिक, सब्सक्राइबर रखते हैं उसका नाम बेस मॉडल। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखेंगे नाम, दो फील्ड होगी, लास्ट नेम, ये भी स्ट्रिंग रहेगी। एक हमें कंप्यूटेड फील्ड बनानी है, राइट? तो उसके लिए डेकोरेटर का यूज करेंगे, कंप्यूटेड फील्ड। और इंटरनल पाइथन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम डेकोरेटर के साथ, प्रॉपर्टी, राइट? एक मेथड बनाते हैं फुल नेम जनरेट करने के लिए, आपका क्लास। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप करना मैंडेटरी है, स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है, क्योंकि कंप्यूटेड फील्ड को रिटर्न टाइप चाहिए, राइट? बिकॉज पाइडेंटिक नीड्स टू नो कि आप किस किस उस फील्ड का डेटा टाइप क्या है, राइट? अगर उसको मिल जाता है तो उसको यूज करेगा उस सीरियलाइजेशन करने के लिए, टू हैव जेसन स्कीमा जनरेटेड, राइट? तो ये सब करने के लिए उसको फुल नेम का द एक्सपेक्टेड टाइप भी पता होना चाहिए, राइट? नॉर्मली आप जब प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो आप यहाँ पे आपको टाइप लाइक स्पेसिफाई करने की, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। बट पाइडेंटिक जो कंप्यूटेड फील्ड है, इट इज नॉट नॉट जस्ट एनी पाइथन प्रॉपर्टी, राइट? इट इज एक्चुअल सिंथेटिक मॉडल इटसेल्फ। सो पाइडेंटिक इंटरनली क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे एक फुल नेम जनरेट करेंगे, राइट? यहाँ पे ऐसे फुल नेम कुछ होगा, आगे हम फुल ये फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करेंगे। तो इंटरनली पाइडेंटिक क्या करेगा, एक यहाँ पे फुल नेम का भी एक फील्ड बना लेगा, एक रजिस्टर कर देगा यहाँ पे वो, राइट? यहाँ पे ऐसे फुल नेम स्ट्रिंग, राइट? इट इज सेम थिंग एज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे ऊपर लिखा अपन ने। सो इसके लिए हमें टाइप डिक्लेरेशन करना जरूरी है यहाँ पे, ताकि पता चले कि ये जो सिंथेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो किस टाइप की है, राइट? वरना आप आइडेंटिटी को पता नहीं चलेगा, दैट्स वाई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना यहाँ पे जरूरी है। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज कर रही है, हम यूज कर रहे हैं पाइथन के लिए, पाइथन से जो आ रही है, इट मेक्स इट लाइक अ एट्रीब्यूट, लाइक पाई प्रॉपर्टी प्लस कंप्यूटेड फील्ड का यूज करने का मतलब प्रॉपर्टी को लाइक अ एट्रीब्यूट यूज करेगा। एंड फॉर कंप्यूटेड फील्ड इट मेक्स इट लाइक ऑफ pydantic model system, right? So this is that is why we need to specify the return type as well. तो चलिए फुल नेम यहाँ से रिटर्न करवाते हैं, राइट? यहाँ पे लिखेंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम, राइट? सो इसके बाद एक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टू टेस्ट, राइट? सब्सक्राइबर फर्स्ट नेम दे देंगे हम अभिषेक, राइट? और लास्ट नेम दे देंगे कुमार।
एक बार इसको मॉडल को डंप करके देखते हैं ताकि देखें कि सिंथेटिक फील्ड जो हम बना रहे हैं वो हो भी रहा है कि नहीं, राइट। तो एज यू कैन सी फुल नेम भी बन गया उसका, अभिषेक कुमार नाम था, उसने यही अब जो नाम दिया था उसी का ही उसने एक प्रॉपर्टी बना ली उसकी, राइट। फुल नेम ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि एक लॉजिक बेस्ड एग्जांपल होगा, जहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे टू चेक द वीडियो स्टैट्स, राइट। जैसे कि आपके भी कोई एक चैनल होगी जहाँ पे लाइक्स एंड व्यूज आते होंगे, तो आपको एक लाइक्स एंड व्यूज के साथ आपको एक एंगेजमेंट रेट भी चाहिए, तो भी वो एक ऑन द फ्लाई कैसे बना सकते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो इंपोर्ट्स तो हो गए, एक क्लास बनाते हैं वीडियो स्टैट्स, राइट। बेस मॉडल जाएगा, इसमें लिखेंगे वीडियो टाइटल स्ट्रिंग, व्यूज जा रहे तो वो इंटीजर होंगे, लाइक्स भी इन, राइट। अभी एक कंप्यू सिंथेटिक फील्ड बनाएंगे, कंप्यू डेफिनेशन करेंगे, हम एक फील्ड बनाएंगे एंगेजमेंट रेट, इसमें पूरा मॉडल जाएगा सेल्फ द क्लास इटसेल्फ। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा वो देना पड़ेगा हमें, लेट्स फॉर द सेक स्ट्रिंग रख देते अभी, राइट। तो इसके अंदर फिर हम देखेंगे कि इफ सेल्फ डॉट जो अगर व्यूज का काउंट है ना, अगर वो 0 है तो रिटर्न करो यहाँ से 0%, राइट। नहीं तो फिर रेट कैलकुलेट कर लो, इट विल बी लाइक्स बाय सेल्फ डॉट व्यूज, क्योंकि व्यूज तो 0 होगा नहीं मतलब, राइट। फिर इसको रिटर्न कर दो, एफ स्ट्रिंग में डाल के राउंड फंक्शन का यूज करेंगे, रेट 2 डेसिमल तक रिस्ट्रिक्ट करके, परसेंटेज सिंबल एंड देन क्लोज इट, राइट। तो रेट निकल गया। एक और कंप्यूटेड फील्ड बनाते हैं हम यहाँ पे यूजिंग, अगर कोई वीडियो वायरल गया है कि नहीं निकालने के लिए, तो ऐसे ही कंप्यूटेड फील्ड लिखेंगे, देन विल हैव प्रॉपर्टी डेकोरेटर इज वायरल, राइट। इसमें भी जाएगा द फंक्शन द मॉडल इटसेल्फ, इसका भी रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो कि होगा बूल, रिटर्न करेंगे हम अगर सेल्फ डॉट व्यूज 10,000 से ज्यादा है कि नहीं, और 1 लाख ले लेते हैं। देखते हैं इसको रन करके, एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, वो आई जस्ट पेस्ट इट हियर, राइट। फिर इसको मॉडल को डंप करके देखते हैं, फिर यहाँ पे क्लोज इन ब्रैकेट, राइट। तो देख सकते हो एंगेजमेंट रेट भी आ गया यहाँ पे, एंड इस वायरल पैरामीटर को भी उसने रजिस्टर कर लिया, राइट। सो दिस इज अ थिंग अबाउट कंप्यूटेड फील्ड्स, आप ऑन द फ्लाई भी जनरेट कर सकते हो, आपको स्पेसिफिकली हर हर टाइम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है फील्ड्स को, राइट। आई गेस प्रॉपर्टी और कंप्यूटेड फील्ड में क्या डिफरेंस है, तो प्रॉपर्टी, अगर कोई बोले कि प्रॉपर्टी तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, राइट, क्यों नहीं यूज कर सकते, बट इसका जवाब है कि प्रॉपर्टी आप इसे कोड में यूज कर सकते हैं, राइट, सब डॉट फुल नेम की तरह, लेकिन जब इसको आप सीरियलाइज करोगे, राइट, जेसन में आप इसको कन्वर्ट करोगे, वो मिस कर देगा, मतलब ये परमानेंट नहीं होगा, राइट, वो गायब हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कैन यूज इस कंप्यूटेड फील्ड, ये स्पेसिफिकली पाइडेंटिक को बताता है कि भाई जब जेसॉन बनाओ या फिर जब सीरियलाइजेशन करो, तब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्लूड करना, राइट। दैट इज द थिंग। और प्रॉपर्टी सिर्फ रन टाइम में सिर्फ रन टाइम का ही एट्रीब्यूट है, राइट। अगर आप इसे किसी ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करो, सीरियलाइज करो, या फिर वहाँ पे ये काम नहीं करेगा, राइट, ये रन टाइम में ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख के उसको, राइट, प्रिंट कराओ तो प्रिंट दिखेगा, बट वो किसी सीरियलाइजेशन या फिर कुछ उसमें यूज नहीं होगा। जब आप सीरियलाइज करोगे तो वो मिसिंग प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं आपको, राइट, फुल नेम आपको दिखेगा नहीं। बट पाइडेंटिटी क्या करता है, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकता है, उसको जेसॉन में सिरियलाइज कर सकता है, मॉडल डंप या मॉडल डंप की जेसॉन की हेल्प से, राइट। सो ये वैल्यू है डायनेमिक कंप्यूटिंग की होती है, जब मॉडल सीरियलाइज करो तब इसको भी इंक्लूड करा जाए, ये आप स्पेसिफिकली बोलते हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज नेस्टेड मॉडल्स इन पाइडेंटिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेस्टेड मॉडल्स की जरूरत क्यों है हमें। तो सोचिए आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए यूजर डेटा हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो यूजर के डेटा में उनका नाम के साथ उसके सिटी स्टेट जिप भी होता है। सो इसके पास मल्टीपल, और यूजर के पास मल्टीपल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं।
सो अगर आप ये सारे फील्ड्स एक ही मॉडल में ही रख दोगे तो आपके पास एक बड़ा सा कोड हो जाएगा जो काफी मेसी होगा, और आप वैलिडेशन लॉजिक को रीयूज नहीं कर पाओगे, राइट। पैडेंटिक में हम मॉडल्स को एज अ टाइप भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है एक मॉडल के अंदर एक दूसरा पैडेंटिक मॉडल हो सकता है, वो उसका एक हिस्सा या फिर पार्ट भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक यूजर और एड्रेस का रिलेशन कैसे हम लिख सकते हैं विद इन पैडेंटिक और नेस्टेड मॉडल्स का यूज करके। तो लेट्स स्टार्ट दैट। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंपोर्ट्स करेंगे। बेस मॉडल, राइट। एक यूजर का क्लास बनाते हैं। उसमें पहले तो उसका एड्रेस जाएगा, उसमें सिटी होगा एज अ स्ट्रिंग, जिप कोड रहेगा एज अ स्ट्रिंग, राइट। एंड देन अनदर क्लास वुड बी देयर यूजर, जिसमें बेस मॉडल रहेगा। उसमें यूजर नेम क्या है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ईमेल अगेन स्ट्रिंग, और हमें यूजर का एड्रेस स्टोर करना है, राइट। तो अभी इसमें हम काफी मेसी कोड लिखने से अच्छा है कि एक सेपरेट फील्ड ही बना दी हमने कि एक एड्रेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी क्लास ही हो। उसमें हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस, राइट। इट वुड वर्क। तो यहाँ एड्रेस एक आइडेंटिटी मॉडल है, राइट। दिस इज अ आइडेंटिटी मॉडल यहाँ पे। देखते हैं अभी इसको एक डेटा पास करके देखते हैं इसमें। सो डेटा वुड बी फिर ईमेल दे देते हैं, gmail.com, राइट। ये हो गया मेल उसका। कुछ एड्रेस दे देते हैं इसको। एड्रेस में हम दे सकते हैं कि सो एड्रेस इज आइडेंटिटी मॉडल यहाँ पे, राइट। तो उसमें सिटी और जिप तो चाहिए, तो हमें सिटी और जिप पास करना पड़ेगा एज अ डिक्शनरी। पुनः डाल देते हैं। अभी इसको पास करके देखते हैं यूजर में। पहले तो अनपैक करना पड़ेगा डेटा, देन प्रिंट करके देखते हैं कि एड्रेस ये सिटी में सेट हुआ है कि नहीं। तो यूजर ऑब्जेक्ट कॉल किया, देन इसमें एड्रेस अभी कॉल नहीं हुआ इसलिए, देन उसका एड्रेस की फील्ड है सिटी, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे पुणे सेट हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अ नेस्टेड पैरेंटिक मॉडल। तो इससे काफी आपकी चीजें आसान हो जाएगी टू वैलिडेट अल्सो, एंड योर कोड डजंट लुक अल्सो अ मेसी कोड। काफी नीट, काफी अच्छा, ब्यूटीफुल एंड रीयूजेबल कोड हो जाता है। अगर आपको फ्यूचर में डिबगिंग करनी पड़ेगी एड्रेस में, तो बस एक एड्रेस क्लास आप चेंज करोगे और जहाँ जहाँ वो क्लास कॉल हुई है वहाँ वो सेम फील्ड लाइक चेंज होते जाएगी, राइट। तो आपकी लाइफ भी इजी होगी इससे। एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं, राइट। उसमें होगा कि एक तो लिस्ट ऑफ मॉडल्स कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, राइट। तो रियल वर्ल्ड में एक यूजर के पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, राइट। इसके लिए हमें यूज हमें यूज करना पड़ेगा लिस्ट में ऐसे, लाइक टू गिव एन एग्जांपल, लिस्ट में ऐसे मॉडल डाल के यूज करना पड़ेगा हमें। कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मॉडल एक आइडेंटिटी मॉडल है। तो इसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि आइडेंटिटी हर एक इंडिविजुअल आइटम को लिस्ट में वैलिडेट कर देगा यहाँ पे, राइट। सो देखते हैं एक एग्जांपल में कि कैसे होता है वो, राइट। तो सबसे पहले हमें लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। टाइपिंग इंपोर्ट, फिर वही आइडेंटिटी से बेसिक इंपोर्ट्स, पॉजिटिव इंट, राइट। तो हमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं, और लाइक हमने जैसे बोला कि यूज़र के पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं, और एक ऑर्डर आईडी में काफ़ी सारे आइटम्स भी हो सकते हैं, राइट। तो हमें वो यहाँ पे सिमुलेट करना है। तो लेट्स जस्ट मेक अ क्लास ऑफ ऑर्डर आइटम्स, राइट। इसमें होगा प्रोडक्ट नेम जो कि स्ट्रिंग जाएगी, एंड देन उसकी क्वांटिटी जो कि होगी पॉजिटिव इंट ग्रेटर देन 0, राइट। दूसरी क्लास बनाएंगे ऑर्डर, जिसमें मल्टीपल आइटम्स होंगे, राइट। तो हमें लिस्ट पास करनी पड़ेगी, देखते कैसे होता है वो। मॉडल, यहाँ पे जाएगी ऑर्डर आईडी,
फिर आएंगे आइटम्स, लिस्ट में डालना पड़ेगा ऑर्डर, जो कि हमने ऊपर आइडेंटिटी डिफाइन किया है, प्लस राइट। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ, ये दिस इज वर्किंग एज लिस्ट ऑफ नेस्टेड मॉडल्स, राइट। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट पास कर देते ऐसे, राइट, पहली बात तो लिस्ट पास करते तो बस आइडेंटिटी चेक करता कि वो लिस्ट है कि नहीं, राइट। लेकिन हमें तो क्या करना है, वो लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल जो ऑर्डर आइटम्स है वो चेक करना है कि उसकी जो प्रोडक्ट नेम है या फिर क्वांटिटी है, वो एक तो प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड देन पॉजिटिव क्वांटिटी शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट, लाइक पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिस्टेड नेस्टेड मॉडल पास करना पड़ेगा टू वैलिडेट दिस। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। दिस इज अ गुड यूज केस। ऑर्डर डेटा पास करके देखते हैं यहाँ पे, राइट। इसमें सबसे पहले जो ऑर्डर डेटा है यहाँ पे, पहले तो ऑर्डर आईडी जाएगी, तो पहले ऑर्डर आईडी पास कर देते हैं, इट इज 101। अभी हमें चाहिए आइटम्स, तो आइटम्स द लिस्ट ऑफ नेस्टेड मॉडल्स, राइट। तो हमें आइटम पास करने के लिए यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी पास करेंगे हम, क्योंकि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, कोई डेटा डिक्शनरी में जाएगा, राइट। राइट, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बन गई। यहाँ पे पास करेंगे हम सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, जो कि ऑर्डर आइटम से आ रहा है, कीबोर्ड होगा, एंड देन क्वांटिटी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि लिखते हैं 5 6 लिख देते हैं, राइट। एक और कोई ऑर्डर दे देते हैं ऐसे ही, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे दे देते हैं माउस, इसको दे देते हैं 12, राइट। तो ये हो गया डेटा। अभी डेटा को पास करके देखते हैं। तो पहले तो ऑर्डर, उसमें अनपैक करेंगे हम ऑर्डर डेटा को, एंड देन लेट जस्ट प्रिंट की लेंथ ऑफ ऑर्डर आइटम्स कितने हैं यहाँ पे अपने पास, जो कि 2 होने चाहिए यहाँ पे, राइट। इसी का अगर लेंथ निकालेंगे इसी फील्ड का, तो 2 तो सेट हो गए वहां पे, तो देखते हैं वो डॉट आइटम्स, इसका लेंथ निकालना है हमें। देख सकते हो 2 तो हमने सही से इसका यूज किया है। सो दिस इज वेरी गुड यूज केस ऑफ डूइंग दिस। एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, नॉट जस्ट यहाँ पे ऑर्डर को प्रिंट करके देखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ऑर्डर आईडी तो यहाँ पे सेट हो गई 101 यहाँ पे, राइट, इसकी फील्ड में। देन आइटम्स जो थे हमारे पास, आइटम्स में 2 थी हमारे पास आइटम, एक तो प्रोडक्ट में माउस था, एंड देन कीबोर्ड था। तो हमें वो आइटम में लिस्ट भेज दिया हमने, और उस लिस्ट के अंदर जो भी हमने जैसे ऑर्डर आइटम्स देखा था, जो कि इसमें ये पायरेंटिक मॉडल पास किया था, तो उसका प्रोडक्ट नेम भी यहाँ से उठा लिया उसने, कीबोर्ड। दूसरा प्रोडक्ट नेम उसने उठा लिया यहाँ से माउस, एंड द क्वांटिटी भी सेट कर ली उसकी, राइट। अगर यहाँ पे कुछ भी हम जैसे यहाँ पे 0 पास कर दिया, तो ये एरर थ्रो कर देगा, राइट। कि हमने तो यहाँ पे बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए भाई, तुमने तो यहाँ पे 0 पास कर दिया, जो कि इनवैलिड फील्ड है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज हाउ नेस्टेड मॉडल्स इन पाइडेंटिक वर्क्स। तो एक वैलिडेशन फ्लो होता है कि पाइडेंटिक में हमेशा बॉटम अप वैलिडेशन करता है, राइट। पहले सबसे छोटे नेस्टेड मॉडल्स वैलिडेट होंगे, फिर पेरेंट नोड मॉडल में जाएगा वो। तो देख सकते हो यहाँ पे दिस वाज अ पेरेंट नोड ऑर्डर, उसके अंदर एक चाइल्ड नोड मॉडल था, जो कि बेस लाइक पेरेंटिक मॉडल था, राइट। तो सबसे पहले वो इसको वैलिडेट करेगा, देन बॉटम्स अप अप्रोच के साथ हर एक, ऐसे अगर हमारे पास 100 मॉडल्स होते हैं, तो सबसे डीपेस्ट मॉडल जो होता है नोड चाइल्ड, वहां पे जाके वो सबसे पहले वहां पे वो वैलिडेशन करेगा, देन ऊपर आते आते वो पेरेंट नोड पे फाइनल वैलिडेशन करेगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी ब्रेक होता है, तो पूरा वो फ्लो को इनवैलिड करके उसमें एरर थ्रो कर देगा। सो दिस इज द यूज केस विद पाइडेंटिक, एंड इसको रीयूजिबिलिटी में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर आपने लाइक एड्रेस मॉडल के एक बार बना लिया, राइट, तो आप उसे यूज़र, कंपनी, लाइक शिपिंग मॉडल्स, इस सारे फील्ड्स में भी आप उसको हमेशा रीयूज कर सकते हो। सो इससे आपका कोड काफ़ी मॉड्यूलर बन जाता है, और डीबगिंग अगर आपको करनी होगी तो किसी एक मॉडल में जाके उसको आप चेंज करोगे, और सब वो सारा लॉजिक अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा जहाँ पे भी आपने उसको कॉल किया होगा, जहाँ पे भी आपने उसको यूज़ किया होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेस्टेड मॉडल्स इन पाइडेंटिक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सीरियलाइजेशन एंड डंपिंग।
तो पहले देखते हैं कि सीरियलाइजेशन है क्या बेसिकली, राइट। तो पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट्स पाइथन के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरनेट पर डेटा सिर्फ जेसन या फिर डिक्शनरीज के फॉर्म में ही ट्रैवल होता है। पाइडेंटिक मॉडल्स को वापस डिक्शनरी या जेसन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम सीरियलाइजेशन या डंपिंग कहते हैं, राइट। पाइडेंटिक V2 में इसके लिए दो मेथड्स हैं। पहले तो है मॉडल डंप, जो कि है रिटर्न करता है एक पाइथन डिक्शनरी, राइट। और दूसरा मेथड है मॉडल डंप जेसॉन, राइट। ये रिटर्न क्या करता है आपको, जेसॉन स्ट्रिंग, राइट। सो दीज आर टू मेथड्स इन पाइडेंटिक। तो पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसमें फिल्टर्स भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, राइट, टू एक्सक्लूड एनी फील्ड फ्रॉम द पाइडेंटिक मॉडल। तो वो भी देखते हैं, राइट। तो पहले तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम पाइडेंटिक। इंपोर्ट बेस मॉडल एंड फील्ड इंपोर्ट करेंगे हम। एक क्लास बनाते हैं यूजर, जिसको हम डंप करेंगे बेस मॉडल, राइट। इसमें होगा यूजर नेम, स्ट्रिंग में जाएगा, ईमेल होगा जो कि स्ट्रिंग में जाएगा, एंड पासवर्ड होगा, राइट। अभी हम देखेंगे पासवर्ड को एक्सक्लूड भी कैसे कर सकते हैं, राइट। इसको पासवर्ड रखते हैं अभी के लिए। फिर एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसमें डेटा पास करते हैं यूजर। इसमें डेटा जाएगा, पहले तो यूजर नेम क्या है, तो अभिषेक, राइट। ईमेल क्या है, अभी के लिए XYZ रख देते। देन रखते हैं पासवर्ड क्या है, राइट। राइट, ये हो गया इसका पासवर्ड। तो देखेंगे अगर अभी हम इसको डंप करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, राइट। तो यू प्रिंट करेंगे हम यूजर डॉट, जो कि हमें डिक्शनरी देनी चाहिए पाइथन की, राइट। तो देखो यहाँ पे यूजर का डंप आ गया, लेकिन आप सोचोगे यार मुझे पासवर्ड तो नहीं भेजना चाहिए, राइट। पासवर्ड कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, मेरे वो डेटाबेस में ही रहना चाहिए, राइट, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, राइट। तो इसको हम एक्सक्लूड कैसे करेंगे, राइट। तो इसका भी एक्सक्लूड करने का एक वे होता है। आप स्ट्रिंग जब पासवर्ड डिफाइन कर ही रहे हो, वहां पे फील्ड पैरामीटर में आप डाल दो एक्सक्लूड इक्वल्स ट्रू, राइट। तो फिर ये फील्ड डंप में नहीं आएगी आपके, लाइक डेटाबेस में तो होगी बट वो डंप नहीं होगी फील्ड, राइट। अभी इसको रन करते हैं तो देखो गायब हो गई, राइट। सो दिस इज द यूज केस ऑफ डंप, राइट। आप फील्ड में भी एक्सक्लूड कर सकते हो, वो डंप में नहीं आएगा। देन एलियासेस देखते हैं, जो कि सीरियलाइजेशन में यूज होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एपीआई आपको वियर्ड सारे कीज मांगने लग जाती है, जैसे कि आपको की मांग लेगी यूजर आईडी, राइट। यूजर, एक डैश होगा, एनआईडी। तो आप इसको एज इन पास कैसे करोगे यहाँ से, राइट। क्योंकि ये पाइथन में तो अलाउड ही नहीं है सिर्फ वेरिएबल्स का नाम रखना, राइट। और एक एग्जांपल हो सकता है कि उसने फर्स्ट नेम मांग लिया, राइट। ये ऐसे, ये भी सही नहीं है, राइट। पाइथन में ऐसे वेरिएबल बना ही नहीं सकते हम, कैसे करेंगे हम इसको। तो फिर इसका एक वे है यूजिंग अलियासेस, राइट। तो देखते हैं उसका। तो हमने तो बेसिक इंपोर्ट तो कर ही लिया है, तो एक क्लास बनाते हैं, एक्सटर्नल एपीआई यूजर, राइट। इसमें जाएगी बेस मॉडल, यूजर आईडी जो कि होगा इंटीजर, और इसमें फील्ड नेम में डाल देंगे हम एलियस। क्योंकि हमें यूजर नेम, यूजर आईडी तो हमने ऐसे फीड करी क्योंकि पाइथन अलाउज दिस ओनली, ऐसे डैश डैश तो अलाउड नहीं करेगा। तो इंटीजर को हम कैसे इसको फील्ड के जरिए चेंज करेंगे, वो है कि हम यहाँ पे बाई एलियसेस, तो यहाँ पे एलियस डाल देंगे यूजर आईडी, जो कि हमें चाहिए, हमारी एपीआई को चाहिए ये इस तरीके से नाम, राइट। दूसरा है फुल नेम एंड उसको नेम, राइट। ये चाहिए उसको स्ट्रिंग, इसको हम सेट करेंगे फील्ड के जरिए एलियासेस फुल नेम, उसमें भी उसको डैश चाहिए, राइट। तो एक बार इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसको रन करके। यूजर आईडी तो इंटीजर चाहिए हमें, राइट, 01 दे देते हैं। एंड फुल नेम पास करेंगे हम, क्या अभिषेक ही रख देते हैं, यही है उसका फुल नेम, राइट। अगर हम इसको डंप करेंगे पहले तो, पहले देखते हैं इसको, इसका यूज केस हमने एलियासेस देख लिया, लेकिन अगर प्योर अब डंप करोगे ना ऐसे, तो ये नहीं चलेगा, ये एलियासेस नहीं लेगा। इसकी एक पैरामीटर होती है जो कि सेट करने में, एक बार दिखा लेता हूँ कैसे होता है। ओके, आपको इनपुट भी डिक्शनरी में देना पड़ेगा आई गेस। तो
सो दिक्कत ये हो गई थी कि जब ये डंप करोगे, राइट, तो एज इन हमने एलियासेस तो दे दिया है, बट जब डेटा भी जाएगा तो भी वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो इसी एलियास के फॉर्म में हो, तो हमें यूज़र आईडी भी हमें उसी फॉर्म में देनी पड़ी और फुल नेम भी हमें जो एलियास का नाम दिया था उसी फॉर्मेट में देना पड़ा। भले हम उसका लाइक नेम यहाँ पे कुछ भी रखे, फील्ड नेम, बट हमें एलियस के नेम के हिसाब से डेटा देना पड़ेगा। और बट डम बाय डिफॉल्ट लाइक बाय एलियस अगर ट्रू कर दोगे तो ये वहां से उठा लेगा, लाइक एलियस की वर्ड यूजर आईडी यहाँ पे सेट हो गई, हमने तो दी थी बट यहाँ से उसने उसको भी सेट कर लिया, हमने यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा दिस फील्ड्स, राइट। दिस वाज वन एग्जांपल विथ एलियसेस। एक और देखते हैं एग्जांपल जिसमें हम एक्सक्लूड जो ऑप्शनल एंड वैलिडेट लाइक डिफॉल्ट फील्ड्स होती है उसको भी कैसे हैंडल करते हैं इन डम्प। तो दो मेथड्स होते हैं, पहले तो होता है कि एक्सक्लूड नन। ये ये क्या करेगा, सारी नन वैल्यूज को वो हटा देगा डंप में से, राइट। जो भी सेट नहीं हुई है, यूजर ने दी नहीं है, वो सारी वैल्यूज को हटा देगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रिमूव्स ऑल नन वैल्यूज, राइट। एक और होती है चीज एक्सक्लूड अनसेट। अगर ये ट्रू कर दिया है तो जो भी डिफॉल्ट फील्ड थी, राइट, जो यूजर ने भेजी नहीं बट हमने एक्सप्लिसिटली उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी थी, वो वहां से उसने उठा लिया। सो डिफॉल्ट्स को ये हाइड कर देता है, राइट। यूजर ने तो दिया नहीं था बट हमने खुद से सेट किया ना डिफॉल्ट फील्ड, इसलिए उसको हाइड कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते थे कि रिमूव्स। एक एग्जांपल देखते हैं, क्लास सेट करते हैं अपन। क्लास होगी प्रोफाइल अपडेट, जिसमें जाएगा बेस मॉडल, इसमें होगा बायो जो की जाएगी स्ट्रिंग। अगर नहीं दे रहे तो फिर हम उसको नन टाइप असाइन कर देंगे, राइट। सो दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड, कुछ नहीं दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नन हो जाएगा उसका। लाइक एक वेबसाइट रखेंगे पैरामीटर, इसका देखेंगे स्ट्रिंग, इसको भी हम ऑप्शनल फील्ड बना देंगे, राइट। एंड लोकेशन, लोकेशन के लिए स्ट्रिंग आएगा अगर है तो, नहीं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे हम इंडिया, अगर यूज़र नहीं दे रहा है तो लोकेशन वुड बी सेट टू इंडिया, राइट। एक इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूज़र प्रोफाइल अपडेट, जिसमें सिर्फ बायो जाएगा, क्या लर्निंग आइडेंटिटी, राइट। ये हो गया उसका बायो। अब देखते हैं, पहले तो डंप करके देखते हैं कि क्या होता है नॉर्मल डंप विदाउट एनीथिंग। तो देख सकते हो उसमें सब कुछ ही आ गया, नन भी आ गया, लोकेशन भी आ गया, राइट। तो व्हाट इफ मुझे ये नहीं चाहिए, राइट, मुझे नन वाले फील्ड्स नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड नन को ट्रू कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड नन को ट्रू सेट कर दिया। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे जो भी नन जो ऑप्शनल फील्ड्स थी वो हट गई, राइट। अभी एक और वे होता है इसको करने का, एक्सक्लूड अनसेट, राइट। इसको अगर ट्रू कर दोगे तो क्या होगा कि नन वाली फील्ड्स तो हट ही जाएगी, राइट, वो भी ऑप्शनल फील्ड थी, और जो डिफॉल्ट फील्ड थी वो भी हट जाएगी यहाँ से, राइट। तो देखते हैं, तो देख सकते हैं यूजर ने कुछ दिया नहीं था इसलिए वो हट गई वहाँ पे लोकेशन में। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल लिख देते हैं, जो कि यूजर ने दी नहीं थी, राइट। तो दिस इज द यूज केस विद serialization इन Pydantic। सो आई गेस वी आर एट द एंड ऑफ द लेक्चर, राइट। तो देखो कि पाइडेंटिक हमने फुल्ली एक्सप्लोर कर लिया है। हमने शुरुआत करी थी हिस्ट्री और रस्ट इंजन से, राइट, और हम खत्म कर रहे हैं कि हमने एडवांस सीरियलाइजेशन भी देख लिया है। तो पाइडेंटिक सिर्फ एक टूल नहीं है, राइट, ये एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपकी और आपकी डेटा के बीच में एक भरोसा, ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो अगर आप ये सारे कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप किसी भी लेवल का पाइथन बैकएंड या फिर एआई सिस्टम हैंडल कर सकते हैं, राइट, विथ ऑल दिस वैलिडेशंस। सो उम्मीद है आपको ब्रेनबॉइट की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सारे कोड आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप अ, कोई भी प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हो तो याद रखना, डोंट जस्ट कोड, वैलिडेट also यूजिंग Pydantic।
So I guess that's it from my side. Keep building and keep learning from BrainBite. Thank you.